IQAC, IQAC, NSS, and Sports Committee of the college. The theme of today's session is Raj Yog. We are privileged to have with us Swami Shama Chaitanya ji, the chief guest and speaker for today's session, Professor Ravi Narayan Kar, Principal, Shamlal College, Dr. Seema Dabas, CHD Convener, Shri V.S. Jaggi, Dr. Sunita Punia, esteemed faculty members and participants with us. I once again welcome all of you. This 15-day workshop is organized at a time when COVID-19 has affected each one of us in one way or the other. The holistic approach to health and well-being provided by the practice for yoga is critical now as the pandemic has disrupted lives, created loneliness, and has increased anxiety. We are grateful to Swamiji for giving his valuable time and sharing his expertise with us during this workshop. Swamiji is pursuing his spiritual calling in Rishikesh. Well, we are privileged to have few sessions with him earlier also. Last year also we had a great session with him. In inaugural also we had opportunity to listen to his holistic thoughts. Swami Chaitanya ji was a student of Hindu College, Delhi University, and he started his professional career as a lecturer at the Delhi College of Arts and Commerce in early 90s. He switched several jobs and later worked with World Bank for a decade. Dissatisfied, he called it a day and moved to Rishikesh to study Vedanta and other scriptures with traditional acharyas. He spends his time studying, teaching, traveling, and counseling people in distress. Swamiji, a great salute to you from all of us, and we are really privileged to have you with us. We hope and believe that the deliberations made in this workshop could make the meaningful contribution in these difficult times. We are really thankful to our principal sir, Professor Ravi Narayan Kar, for being instrumental in organizing this workshop with a holistic vision. Every year we celebrate this International Yoga Day with great enthusiasm. And this year we have moved a step ahead by organizing this 15 days workshop for providing counsel and yoga practices to our interested participants. Sir, with your vision, energy, enthusiasm, and focus on education and learning, our college is achieving greater excellence. Thank you very much. Sir, may I request you to say a few words? Principal, sir. Sir, you are on mute. Uh, Namaskar, Swamiji. Uh, Thank you, Kavita ji, for your kind words. And once again, I welcome you all. At the same time, I must congratulate Dr. Seema Davas, the convener of this CSD, for having conceptualized this workshop in cooperation with uh, what to call about Jaggi. He has such a pillar of strength to the entire, the college institution. So, and you are also very ably supported by your team, like Dr. Gayatri Madam. Despite being one of the senior teachers, she has never ever shied away from doing any work, whatever. That is the best part of her personality. So that's why I'm privileged. So like a youngster, I always, she's always in my mind to put any committee. I know she can deliver. So that kind of a privilege I always take for her. And I am happy to see you, Kavita Madam, back in your energies and everything. And Swamiji is also giving his blessings. And Dr. Kusha Tiwari also, the convener of IQACC, is always there to help us out in all kinds of activities of the college. And I'm very happy that Dr. Sunita Punia is also conducting this yoga workshop for the students and for the participants. With this, I won't take much time, but all of us are gathered here to listen to Swamiji on Raj Yoga. So this is his second part, and
Swamiji, the first day you have started and it was so well received. I'm getting a lot of inquiries and compliments, even with the efforts of some of my colleagues. We got some media coverage also. So thank you for always helping us out. And this is very, need of the hour. So this kind of things are the need of the hour, and we hope this partnership will continue and will come back to you again and again for some, we are engaging professional counselors also with the kind of soothing words from you, that is, 10 times better than a counselor can provide. So these are the, very in a very soft way, the kind of solace, the kind of inspiration, the kind of motivation you can provide, so that may not be matched with any counselors. So that is how we are thinking of approaching you, sir, Swamiji, whenever there is a need. So we are hopeful of getting back to you again and again. So with these words, once again, I welcome you all, and I'm happy that every day almost 60, 70 people are joining. So that is the best part of this workshop. Namaskar. So thank you. Thank you, sir, for your kind words, your guidance, and much needed encouragement always. Now, I won't take much of the time, and I straight away request Swamiji to proceed with his deliberations. Over to you, sir. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ तत्सत्. So thank you all of you for having me and giving an opportunity for an interaction with young boys and girls, because I think they are the foundation of our society, because they'll take it forward. As advised even earlier, I'll try to mix my English with Hindi, because students, some of them may find Hindi even closer to them because that's their mother tongue. So I'll try to mix it as much as possible. And second thing, this Raja Yoga or Indian philosophy is best expressed in our language, because English is a foreign language, doesn't necessarily. Is my voice audible? Is it fine? Is it all right? Yes, sir, Yeah? it's perfect. Okay. Yes, sir. So I said that today we will discuss Raja Yoga, even though actually the better way would have been to sort of start with Karma Yoga and Bhakti, then Raja Yoga, and finally Jnana Yoga. But I did this because already we have done an introductory class, a discussion on Sankhya Darshana. एंड हमने वो सांख्य दर्शन जब चर्चा किए थे उसके परिप्रेक्ष्य में हमने क्या क्या याद किए थे, आपको याद होगा सृष्टि प्रक्रिया कैसे हुआ है, चैतन्य और जड़ ये दोनों मिलके ये विश्व है, और चैतन्य स्वरूप जो निर्विकार है which doesn't change, that is the पुरुष तत्व, and then the prakriti, the moola prakriti, main cause, the causal universe out of which this whole world has manifested, first becomes the पहला विकार जो है उसका, that is called chitta or mahat. Out of this, then this ahankara and mana, and it goes on, the manas and ahankara, buddhi, and then the sodasa vikaras, then pancha bhuta, pancha tanmakaras, pancha jnanendriya, karmendriya. So total we have 24 tattvas plus purusha and 25 tattvas. That is how Sankhya explains it. Now we are now going to deal with the yogic darsana. The yoga darsana in a way is the technological application of Sankhya darsana. If Sankhya is science, then yoga is technology. And why it's called technology? Because it discusses in detail, it doesn't deal with any philosophy. दर्शन की बात नहीं करते हैं, कैसे दिमाग को शांत किया जा सकता है। क्यों? हमने ये चर्चा किया था पिछले बार कि पुरुष और प्रकृति का विवेक से ही कैवल्य प्राप्ति हो सकती है। वो कैवल्य क्या है? आपका एकत्व को आप पा सकते हैं, जो पुरुष जो चैतन्य है अपने आप को पहचानता है, यानी ये संसार सागर से वो मुक्त हो जाता है, मतलब नहीं भाग जाता है,
उसे समझ में आ जाता है तो वो ये सबसे ये संघात में फंसे नहीं रहता है। जैसे यू हैव गॉन टू अ मैरिज पार्टी, but if you are knowing that you are there for only 5 minutes because your exam is tomorrow, you are there in the party but you are thinking about your examination. Same way संसार में क्या चल रहा है उससे वो भागता नहीं है, वो व्युक्त हो जाता है, उससे वो जो संश्लिष्ट होकर रहता था अज्ञान के कारण वो संश्लिष्ट नहीं रहता है, हर जगह रहते हुए भी नहीं रहता है, कैवल्य स्थिति को प्राप्ति उसकी हो जाती है। अब ये कैवल्य प्राप्ति के ऊपर जो योग शास्त्र हैं, राज योग शब्द विवेकानंद ने उसका प्रयोग किया था पतंजलि योग सूत्र को समझाने के लिए। हमारे देश में बहुत सारे शास्त्र हैं योग के ऊपर, एक है शिव संहिता और एक है हठ योग प्रदीपिका, भेरंड संहिता, विज्ञान भैरव तंत्र, ऐसे बहुत सारे किताबें हैं। ज्यादातर योग तंत्र ट्रेडिशन टुगेदर, okay, together that sort of comes. Now we are basically going to focus on what today we're going to focus on the Patanjali Yoga Sutras, because क्योंकि आप लोग आसन वगैरह सीख रहे हैं जो पतंजलि योग सूत्र से बहुत अच्छे तरह से संपर्कित है। तो आसन तो हो गया आपका फिजिकल एक्टिविटीज, थोड़ा प्राणायाम भी करते होंगे। आज हम उसके दार्शनिक बैकग्राउंड क्या है, किस परिप्रेक्ष्य में उसके पर बात होती है, आपको सिखाया जाता है। आपको थियरी का भी थोड़ा ज्ञान हो जाए तो आपका प्रैक्टिस और उन्नत और संपन्न हो जाएगा। इसके कारण हम ये कह रहे हैं। अब पहला चीज क्या है कि मन को क्यों हम शांत करना चाहते हैं, क्योंकि मन बंदर के जैसा जंप करता रहता है, इट कीप जंपिंग लाइक अ मंकी। एंड देन इफ यू लुक एट द ओशन, सागर को आप देखिए, समंदर को, ऊपर वेव्स होते हैं और धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो वो शांत रहता है। तो आप जब ध्यान कर पाएंगे तो आपका निचला स्थिति क्या है वो आप अनुभव कर पाएंगे। ऊपर के जो वेव्स हैं, जो थॉट्स प्रोसेसेस आ रहे हैं, उससे आपको छुटकारा मिलेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। माइंड इज देयर टू थिंक बट समटाइम्स यू आर स्लेव्स टू योर थॉट्स। जैसे आपके पास एक गाड़ी है लेकिन उसका ब्रेक या स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं है, तो वो उसकी गाड़ी में बैठना सुइसाइडल हो जाता है, क्योंकि वो गाड़ी आपको कहीं ना कहीं लेके मार देगी। ऐसे ही आपका दिमाग, आप उसको श्रृंखलित कर लेंगे, डिसिप्लिन कर लेंगे तो वो आपका वाहन बनेगा। लेकिन आप उसको विशृंखलित स्थिति में रखेंगे तो आप उसका वाहन बन जाएगा, आपको खींच के इधर उधर जाके वो जान से मार देगा। तो जैसे एक बंधा हुआ आदमी, आप गार्ड है ट्रेन के, आपका हाथ पैर बांध के हम ट्रेन के ऊपर आपको बैठा दें तो ट्रेन आपको क्या करेगा, अपने गंतव्य स्थल पर नहीं ले जाएगा, आपको जान ले लेगा आपका। ऐसे ही यही दिमाग जो हमारा एक अस्त्र है, हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हमारा एक संपत्ति है, उसके जरिए हम इतने सारे काम करते हैं, वही वो जानलेवा हो जाता है जब उसको हम समझ नहीं पाते हैं और काम में ठीक से नहीं लगा पाते हैं, वो दिमाग ही गड़बड़ हो जाता है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहे हैं कि आपका आत्मा यानी मन ही आपका दोस्त है और मन ही आपका शत्रु है। आपके एक ये जितने छात्र हैं सबसे मैं कहना चाहता हूँ, आपका सबसे बढ़िया एक दोस्त है, पता है उसका नाम कौन है? वो दोस्त आप ही हैं। और आपका सबसे खराब एक दुश्मन भी है, और पता है वो दुश्मन कौन है? वो आप ही है। आपका सबसे बढ़िया दोस्त आप हैं, आपका सबसे खतरनाक दुश्मन आप हैं। कब आप अपना दुश्मन बन जाते हैं? जब आपका मन, आपकी प्रकृति आपके कंट्रोल में नहीं होता है। और जब आप छात्र लोग खास करके जब अपने मन को, अपने शरीर को, अपना अभ्यास को श्रृंखला में आप बांध के रख लेते हैं, तब ये आपका बहुत लड़ाकू विमान बन जाता है और आपको बहुत दूर देश तक ले जाता है, सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन क्या वो आपका लड़ाकू विमान बनेगा या आपको खींच के नीचे ले जाएगा, वो आपके हाथ में है। इसीलिए ई विज्ञान का हम यहाँ पे जानने का इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि ये क्या है। तो हमारे मन के जो वृत्तियां हैं बहुत तरह के हैं, एक क्लिष्ट है और अक्लिष्ट है। कुछ तो आपको दुख देने वाले हैं, जैसे आप एक गलत चीज के बारे में सोचेंगे उसको करने के लिए तो वो क्लेश ही होगा आपको, मुझे ये नहीं है। आप बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आप दिमाग में लागे मेरे पास एक गाड़ी होता, मैं स्विट्जरलैंड में जाता, हमारे देश में कोरोना क्यों है, इतना गरीबी क्या, अंट संट सोच के आपका समय आप बर्बाद कर सकते हैं। जो समय है उसका भी लाभ आप नहीं उठाएंगे। ऐसे क्लिष्ट अक्लिष्ट है जो और आपका जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें 4 अध्याय है मूलतः। अब जब पढ़ेंगे, एक है समाधिपाद, जिसमें आपको समझा जाता है
कि जो मन को स्थिर करने पर किस किस चीज की प्राप्ति होती है, समाधि क्या होता है, बहुत मूलतः, क्योंकि समय हमारे पास ज्यादा नहीं है कि हम विशद रूप से उसका व्याख्या करें। और एक साधना पाद है जिसमें आप टेक्निक्स के बारे में जानते हैं, कैसे मन को स्थिर किया जाए। और फिर विभूति पाद में इसे आप स्थिर करने पर आपको क्या क्या फल मिलता है, बहुत सारा सिद्धियां मिलती है। आप एक जगह पे 10 घंटा क्या 15 घंटा भी बैठ लेंगे, आपको बहुत जल्दी किताबें याद रह जाएंगे, आपका प्रतिपन्न मतिता इतना बहुत सूक्ष्म हो जाएगा कि एग्जाम में आप बहुत अच्छे करने लगेंगे, जहां जाएंगे लोग आपको प्यार करेंगे। ये सब सिद्धियां हैं योग के साथ माध्यम से आप पा सकते हैं। सुंदरता से आदमी किसी को संक्रमित नहीं कर सकता है, संक्रमित कर सकता है अपने ज्ञान और शुभेच्छा से, ये याद रखिए। असली सुंदरता जो है किसी का भी, पुरुष हो या नारी, उसका गुडविल है और उसकी अच्छाई है, ये आपको योग सिखाता है। अंतकरण जब शुद्ध हो जाएंगे तब आप बहुत आकर्षक बनेंगे। ये हैंडसम जो आदमी जो आकर्षक बनता है वो 2 दिन का होता है, क्योंकि आपका जो सौंदर्य हो चिरस्थायी नहीं है, क्षणस्थायी है। लेकिन जो अच्छाई है, आपका अंदर का जो गुण है, वो सब मतलब चिरस्थायी, मतलब बहुत काल तक रह सकते हैं। इसीलिए ये अंदर के जो संपत्ति है उसको आप इकट्ठा करने में प्रयास करें, ठीक है। और अंतिम में जो कैवल्य पाद है उसमें आपको फल दिया जाता है, कैसे आपका मुक्त स्थिति कैसे मिलता है, ठीक है। तो हमने ये चर्चा कर लिए थे, पुरुष क्या है, स्वतंत्र है। प्रकृति क्या है, नहीं, सापेक्ष है, स्वतंत्र नहीं है। अब सांख्य में पुरुष और प्रकृति दोनों स्वतंत्र है, लेकिन वेदांत में प्रकृति स्वातंत्र नहीं है। शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं हो सकता है। कृष्ण जी के जो शक्ति है वो अलग नहीं है, भगवान से भगवत शक्ति अलग नहीं है। ये हमारे वेदांत के है। जैसे कोई इलेक्ट्रिक वायर से इलेक्ट्रिसिटी जो है आप अलग नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सांख्य मानता है परिणामवाद में, जैसे दूध दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, ये बदलता जाता है। ऐसे ही आपका मन, जैसे पुरुष जो प्रकृति है, वो अलग अलग परिणाम को प्राप्त करते हुए संसार का रूप ले लेती है, ये वो उनका कहना है। बाद में हम ज्ञान योग जब चर्चा करेंगे तब आप सुनेंगे कि ये जो संसार दिखता है लेकिन सच नहीं है। सच किस तरह नहीं है वो हम तब चर्चा करेंगे जब वहां जाएंगे। अब सिर्फ आपके मन में किस तरह का वृत्तियां होते हैं, हाउ डज योर माइंड वर्क, इफ यू आस्क योरसेल्फ you will find that generally you can divide all movements of your mind into 2 types. What are these types? 2 types. One is laya, the other one is vikshepa. What is laya? आप जब सो जाते हैं, आदमी, आपका दिमाग काम नहीं करता है, थोड़ा सा टायर्ड हो जाता है, फटीग्ड हो जाता है, तो वो सो जाता है। आप क्लास में बैठे आपके यू स्टार्ट डोजिंग, राइट, दैट इज लय अवस्था। ध्यान में बैठते हैं, नींद आ जाती है, पढ़ाई में बैठती है, नींद आ जाती है, वो लय अवस्था है। बाकी समय क्या करता है, वो जंप करता रहता है। वो 4 तरह का वृत्ति होते हैं विक्षेप अवस्था का। विक्षेप मीन्स गेटिंग स्कैटर्ड, यू आर ऑल ओवर द प्लेस। एंड व्हाट आर दीज? सो दीज आर ब्रीफली प्रमाण, मतलब जैसे आप पढ़ाई करते हैं, सत्य की ओर बढ़ते हैं। विपर्य, झूठ का ज्ञान होता है, जो नहीं है वो उसको आप सच मानते हैं। जैसे कोई दौड़ा पड़ा, उसको आपने सांप मान लिया, गलत ज्ञान होता है। विकल्प, जैसे गर्म पानी से घर जल जाएगा, जैसे बात तो करते हैं, विकलात्मक भाषा होता है, वो होता नहीं है। और स्मृति, मेमोरीज, आपके पुराने चीजें बहुत सारे याद आता है। और विकल्प में आपके बहुत सारा कल्पनात्मक, आप जो बहुत सारी चीजों का कल्पना करते रहते हैं, ये हो गया प्रमाण। तो उसके अंदर हम ज्यादा घुसेंगे नहीं, क्योंकि हमको कैसे ध्यान करना है, कैसे योग करना है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। अब हम लोगों को बताया गया है कि ये जो आपका 5 क्लेश है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, जो 5 क्लेश क्या है, क्या तकलीफ है आपका दिमाग का, वो 5 है, याद रखिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इसको आप रट लीजिए। जो छात्र हैं आपके बीच में, थोड़ा सा आपके पास पेपर पेन है तो पॉइंट ले लें तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे ही भूल जाएंगे। ऐसे क्या है आपका अविद्या, क्या होता है? अविद्या है अज्ञान, और उसके कारण जो अनित्य है उसको हम नित्य मानते हैं। जैसे जवानी, जैसे कल हम कोई एक माता जी से बात कर रहे थे, अपने बच्चों के बारे में वो बता रही थी, बोल रही थी अब मेरा चैलेंज है बेटी को कैसे समझाऊं कि कोई दोस्त बनाना जिंदगी का मकसद नहीं है, जिंदगी में कुछ बनना मकसद है।
अब जितने टीनेजर्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मुझे फ्रेंड है या नहीं है, उनका ये सवाल बन जाता है बहुत मुख्य। वो मुख्य सब सवाल नहीं है, गौण सा। जिंदगी जो है आपको कुछ बनने के लिए एक सुविधा दिया गया है, एक अपॉर्चुनिटी मिला है। ऐसा ना है कि आप ढूंढ रहे किसके साथ समय बिताऊं, वो एक गौण प्रश्न है। आप जब कुछ बन जाएंगे आपको दोस्त भी मिल जाएंगे, लेकिन आप कुछ बन ही नहीं पाएंगे तो समय नष्ट करेंगे, तो हर जगह से ठोकर खाएंगे। इसलिए आप अच्छे से समझ लिए कि पहले अपने साथ पहले अच्छे से दोस्ती कीजिए। इसीलिए अनित्य में नित्य के ज्ञान, अनात्मा में आत्मा ज्ञान। जैसे शरीर आत्मा नहीं है, उसको आत्मा समझ बैठे, इसी तरह वो वृद्धावस्था को प्राप्त करेगा। ये शरीर हमारे सुंदरता भी चला जाएगा। जैसे जो अंग्रेजी में है, सेनेका करके पोएट है, वो ब्यूटी के बारे में लिखते हैं, ओ ब्यूटी व्हाट ए डूबियस बून, लेंट फॉर अ व्हाइल एंड ऑल टू सून पासिंग अवे। ऐसा एक गिफ्ट है जो 2 दिन के लिए आपको मिलता है, पकड़ते पकड़ते हाथ से निकल जाता है। जैसे आप स्टूडेंट्स कॉलेज में आए, बहुत खुश हो रहे थे, देखते देखते 3 साल खत्म, उसके बाद रास्ते में फिर आप दूसरा डिग्री कीजिए, फिर नौकरी ढूंढिए, लाइफ के पूरा संकट चालू हो जाता है उसी समय। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता जो मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं हूं, ये जो अस्मिता भाव है, ठीक है। आत्मानं बुद्धित्वेन अवधारणम, मतलब आपकी जो बुद्धि है उसको लेके आप कह रहे हैं कि मैं ये हूं। आपका जो मेंटल मेकअप है उसको लेके वो अस्मिता है, आपका इगोइस्टिक इमेजेस अपना। राग क्या है? सुख संयोग इच्छा। राग क्या है? हाँ, मेरे पास ये मिठाई हो तो मैं खाऊं, आइसक्रीम हो तो खाऊं, एक अच्छा वाइफ होना चाहिए, एक गाड़ी हो तो घूमो। जो आपको सुख प्रदान करेगा, ऐसे चीजों के साथ आप जुटना चाहते हैं। यू वांट टू join objects of your pleasure. What you think will give you happiness, that is raga. You can know all of the things that you do in life, they are all driven by desire for some kind of mental or sense pleasure. These are raga. द्वेष क्या है? दुख संयोग विरोध। अच्छा, आपको मैं कहूँ, आप देखिए, छोड़ दिए वो सब, हम 3 दिन तक योग के बारे में चर्चा करें, आप कोई राजी होगा? नहीं। बैठे तो हैं अभी ऑनलाइन में, 1 घंटे का है, मैं कहूँ नहीं 10 दिन का हम करेंगे तो आप भाग जाएंगे, क्योंकि ये आपको दुख देगा। तो ये जो दुख संयोग का विद्वेष, पढ़ाई करो मम्मी कहती है तो गुस्सा आता है, पापा कहते हैं बाहर मत जाओ शाम के बाद तो गुस्सा आता है। क्यों? ये आपको दुख देता है मन को। तो ये दुख संयोग का विरोध करना हो गया द्वेष। ऐसे जो चीज आप करना चाहते हैं, आपके कोई दोस्त मना करे, शिक्षक मना करे, माँ मना करे, पापा मना करे, आपको खराब लगता है, आप द्वेष करते हैं, दूसरों से भी द्वेष करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपका सुख वो छीन रहा है। आप ईर्ष्या करते हैं, सहनशील नहीं बन पाते हैं, आप टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, सब द्वेष है। फिर अभिनिवेश, मरने का भय, जो कोरोना के कारण सब, यही हमारे जिंदगी है, यही मुझे रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। जबकि हमको सबको पता है कि कोरोना से बच भी जाएंगे तो एक दिन तो जाना है। इसलिए जो समय हमारे पास है उसको ढंग से हम काम में प्रयुक्त करें, काम में नियोजित करें, वो चिंताधारा होनी चाहिए जो हमारे पास नहीं आ पाता। अच्छा, ये हो गया अभिनिवेश। अब यहाँ से हम निकलें कैसे? तो योग कहता है चित्तवृत्ति निरोधः। आपको चित्त वृत्तियां, जो 5 तरह का क्लिष्ट वृत्तियां हैं, राग द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, ये जो क्लिष्ट चीज हैं, उससे प्रभावित जो मन का खेल है, वो खेल को विरति दो, उसके रोक दो। वही है आपका शांति का रास्ता या मार्ग। कैसे उसको निरोध करेंगे? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। आपको थोड़ा वैराग्य चाहिए, डिटैचमेंट चाहिए। आप झूठे रहेंगे हर झूठ से, तो झूठ से तो सच्चाई मिलेगी नहीं। जो चीज से आपको एक चीज नहीं मिलेगा, आपको लगता है हाँ वो करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। आपको राइट पाथ में पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे। एक गलत किताब पढ़ के हाई मार्क्स आपको कैसे आएगा? आप अच्छे किताब भी नहीं पढ़ेंगे, मेहनत भी नहीं करेंगे, लेकिन मुझे अच्छे फल लो। अच्छे फल के लिए जो कर्तव्य है, जो साधन है, वो हम नहीं करेंगे, लेकिन फल चाहेंगे। गलत काम का फल क्या होता है? दंड। हम दंड नहीं चाहिए, लेकिन गलत काम करेंगे, हम घूमेंगे, पढ़ेंगे नहीं, लेकिन एग्जाम में कम मार्क्स नहीं आना चाहिए। कैसे होगा? क्योंकि तो नहीं पढ़ेंगे तो उसका फल है कम मार्क्स आएगा। जिंदगी में दंड मिलना है, या कोई आपको हंसी मजाक करेगा, ये चीज तो होना है जिंदगी में। लेकिन हम जो गलत कार्य का फल नहीं चाहते हैं, तभी हर व्यक्ति समाज में पाप करना चाहता है, पाप का फल नहीं चाहता है। कोई भी धर्म करना नहीं चाहता है, सब धर्म का फल चाहता है। यही है दुख यहाँ का। इसीलिए वो कहते हैं कि आपको राग, अभ्यास और वैराग्य से आपको
अपने को संयोजित करना है और समाधि की तरफ बढ़ाना है। अब हम बढ़ेंगे तो क्वांटम जंप तो नहीं करेंगे, फ्लाइट से तो नहीं जाएंगे। वो 5 भूमिकाएं हैं, 5 स्तर है। एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते जाते आप एक निरूढ़ स्तर पे, निर्विकल्प समाधि स्तर में आप पहुंच पाएंगे, ये कहते हैं। अब ये 5 स्टेप क्या है, एक बार हम पहले भी बोले थे पिछले बार। पहला चीज मान लीजिए क्षिप्त। क्षिप्त क्या है? ऑल ओवर द प्लेस, रेस्टलेस माइंड, यू नो, ये करना है वो करना है, भागता रहता है वो। उसमें रजस और तमस, हम पिछले बार बात किए थे, रजस तमस और सत्व। तमस क्या है? तो थोड़ा सा अविद्या और आलस्य, नहीं करना है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। रजस रेस्टलेस, दुखदायक। मोहदायक इज तमस, अज्ञान, and sattva is dharma and balance and those kinds of things. Okay, prakasa tattva, jnana orientedness, that is sattvic, the best among 3 gunas. And these 3 gunas will be there in all of us sometime or the other. एक गुण आपके पास नहीं रहेंगे, ये समझ लीजिए। जो आदमी बहुत सात्विक है, क्या उसमें रजस और तमस नहीं है तो सोएगा नहीं। तमस थोड़ा चाहिए नींद होने के लिए, थोड़ा रजस बिल्कुल नहीं तो नींद से भी नहीं उठेगा, सिर्फ ध्यान में ही रहेगा। नहीं, रजस भी चाहिए, नहाएगा धोएगा, उसको कर्म भी चाहिए। इसलिए रजस भी चाहिए, तमस भी थोड़ा थोड़ा चाहिए, नहीं तो इम्बैलेंस हो जाएगा। जो रात को बहुत लोगों को आपको नींद नहीं आती है लॉकडाउन में, उसका कारण क्या है पता है? आपका तमस डिस्टर्ब हो चुका है। आपका रात को भी और राजसिक एनर्जी आपको दुख पैदा करता रहता है, इसलिए डिप्रेशन के कारण नींद नहीं आती, दिमाग भागता रहता है। इसलिए थोड़ा ध्यान प्राणायाम की जरूरत है, इसलिए हम ये क्लास कर रहे हैं। तो पहला है क्षिप्त अवस्था, ठीक है। जो सबसे डिस्टर्ब आपके क्लासमेट है ना, उसी का आप चिंता कर लीजिए, वही है क्षिप्त, जो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता है, बहुत सारा फ्रैगमेंटेड है, डिस्टर्ब है। दूसरा है मूढ़, वो तम प्रधान है। पहला तो क्षिप्त है, रजस और तमस मिला हुआ है, और जो मूढ़ है वो सिर्फ मूढ़ क्यों, वो गलत तरीके से हर चीज का सोचता है। जो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, जो चीज नहीं करना चाहिए उसमें उसका आग्रह होगा। गलत चीज खाया, गलत दोस्तों के साथ मिलेगा, गलत काम करेगा, जिस समय पढ़ना है वो सोएगा, जिस समय सोना है वो रात को बाहर घूमेगा या टीवी देखेगा, ये सब करता रहेगा, वो मूढ़ है। और वो जो आदमी है वो एक तरह से विचारहीन स्थिति में फंसा रहता है, वो मूढ़ व्यक्ति, मूढ़ मन जो है आपका, मूढ़ता, ठीक है। 2 स्तर हो गया। तीसरा स्तर जो अच्छा स्तर है, जो एक अच्छा प्रोफेशनल का, आपके जो अच्छे प्रोफेसर हैं, आपके बीच में जो सबसे बढ़िया पढ़ाई करता है कोई स्टूडेंट, पढ़ाई करती है स्टूडेंट, उनका विक्षिप्त होता है। विक्षिप्त क्या है? एक क्षिप्ता विशिष्ट है, जो घूमता फिरता दिमाग है ना, उससे ये थोड़ा विशेष रूप है। कैसे है? एक चीज जो करेगा उसमें ध्यानस्थ रहेगा। पढ़ाई कर रहा है उस समय अच्छा से पढ़ाई करेगा, घर के चीज उसमें भी लग जाएगा, खेल उसमें भी लग जाएगा, वो थोड़ा बैलेंस रहता है और सात्विक होता है विक्षिप्त स्तर, इसलिए वो अच्छा स्तर है। और कैपेबल टू क्वाइटन, वो अपने दिमाग को एक जगह लगाएगा और विषयांतर, जब टॉपिक चेंज हुआ फिर दूसरे में लगाएगा। तो जनरली एक गुड प्रोफेशनल जो मल्टीटास्किंग करता है, पढ़ाई भी करेगा, खेल भी करेगा, परिवार संबंध को भी बचाए रखेगा, वो विक्षिप्त होता है। विक्षिप्त नहीं है स्कैटर्ड। विक्षिप्त मीन्स he can take up several sets of things in his mind and can undertake the tasks and can deliver them effectively. There's not a problem. So you should target to be in a vikshipta state as a good student, okay? But if you want to be even purer in your mind, then there is another stage. ये 3 स्टेज जो है अच्छे आदमी का लौकिक स्तर है, ये यौगिक स्तर नहीं है। योग चालू होता है 4था स्तर से, जो एकाग्र स्थिति है। एकाग्र स्थिति में क्या होता है, जो आप अभी आसन प्राणायाम सीख रहे हैं, उसमें दिमाग जो विक्षिप्त स्तर में भी एक विषय से दूसरे विषय, वन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन टू अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन, study and business and house and marriage and children, so many objects, and still the mind is jumping around in a more disciplined way, but nevertheless still jumping around in a more guided fashion. Now, if you want to still that mind, then you will enter into चौथा जो स्तर है, that is called एकाग्र भूमि. What do you do in that? जब क्लेश क्षीण होता है आदमी का, जैसे पढ़ाई वढ़ाई भी कर लिए, आप अपना नौकरी भी हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए, आपको अभी समय चाहिए थोड़ा स्थिर होके बैठे, तो आप कहेंगे मैं थोड़ा ध्यान प्राणायाम करूँ। ऐसे युवावस्था सबसे अच्छा ध्यान होता है, ये याद कर लीजिए। तो बार्धक्य में कोई भी चीज अच्छा नहीं होता है, ना पढ़ाई हो पाता है ना ध्यान हो पाता है। इसलिए जो आप में आग्रह करना चाहते हैं योग वगैरह में,
आपके शरीर अभी आपको बढ़िया साथ देगा जो भी करना चाहता है ध्यान वगैरह। बाकी उम्र होते होते दिमाग सो जाता है बड़े जल्दी, वीकनेस आ जाता है, ये याद रखिएगा। एकाग्र में क्या करता है, फिर उसका 4 भाग है, वितर्क, विचार, सानंद, सास्मित, ऐसे करके 4 तरह का समाधि है। बहुत सरलता पूर्वक मैं कह रहा हूँ, बहुत सारा यौगिक टेक्निक्स है। जैसे आप कोई चीज, कोई देवताओं के ऊपर ध्यान करते हैं, कोई अगरबत्ती लगा के त्राटक कहते हैं उसको बैठ के देख के, या तो एक बिंदु आप बनाए दीवार में उसी को देख के बैठे, long time you are looking at it. What are you trying to do? You are trying to discipline your mind on an object of concentration. These are practices of एकाग्रता। एकाग्रता का अर्थ क्या है, एक अग्र जिसका हो, व्यग्र आदमी है, मतलब बहुत सारे विविध अग्र वाले आदमी है, वो व्यग्र होता है। 5 चीज सोचते सोचते कोई भी ठीक से नहीं कर पाता है। आप व्यग्र ना होकर एकाग्र बने, ये योग कहता है। और वो सीक्रेट टेक्निक है टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, वेदर इन कॉर्पोरेट लाइफ और एजुकेशन और इन मैरिज, एनीवेयर। एकाग्रता चाहिए, कुछ भी आप कर रहे हैं, चाय भी नहीं बनेगा ढंग से एकाग्रता के बिना। तो ये एकाग्रता तो है, ये लौकिक एकाग्रता नहीं है, यौगिक एकाग्रता है, जो जिसके लिए आपको साधना करने पड़ते हैं। और निरोध आभिमुख्य, मतलब कब मन को हम शांत कर पाए। तो एक तो आप पहले बाहर विषय के ऊपर ध्यान करेंगे, स्थूल चीज, देवी देवता, या आप कोई चीज रखे, कोई चित्र रखे, उसके ऊपर ध्यान करेंगे। थोड़ी देर बाद आप जो सूक्ष्म चीज है, तन मात्राएं हैं, जैसे आप एक चित्र देख रहे हैं, कहाँ से बना है, रूप तन मात्रा से तेज पदार्थ बना है। तो तन मात्रा जो सूक्ष्म चीजें हैं, जो स्थूल भूत नहीं सूक्ष्म भूत है, तन मात्रा कहते हैं जिसको हम जो चर्चा किए थे, वो तन मात्राओं के ऊपर ध्यान करता है मन, सूक्ष्म चीजों के ऊपर। फिर ध्यान का माध्यम क्या है, हमारे इंद्रिय, और वो अपना इंद्रियों के ऊपर ध्यान करने लगता है। मैं कैसे जानता हूँ इस संसार को, चलो ये सब चीजें हैं, अब उसके ऊपर ध्यान करता है। फिर वो सूक्ष्म में चला जाता है। फिर अब जो ग्रहणात्मक है, जो ग्रहण हो रहा है विश्व का, इंद्रियों के माध्यम से होता है, तो इंद्रियों के ऊपर ध्यान करने लगता है, वो सानंद समाधि में पहुंचता है। और उससे ऊपर जो ध्यान कर रहा है वो कौन है, मैं हूँ, सास्मित, अस्मिता, अपने कौन है हम, जो ग्रहण कर रहा है चित्रों को, ये पूरा विश्व का तथ्य को ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहिता पे ध्यान करने लगता है, तब वो सानंद समाधि हो जाता है। लंबा प्रक्रिया है, वो बड़ी थियोरिटिकल है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने बताया। अब ये जब हो गया, वो अब वैराग्य से या अपर वैराग्य से पाते हैं। वैराग्य क्या है, विराग मतलब, राग मतलब अटैचमेंट, उसको आप जब शिथिल कर देते हैं, दुबला कर देते हैं, ढीला कर देते हैं, उसका जो जाल है उससे निकलने का प्रयास करते हैं, उसका वैराग्य कहते हैं, है ना। तो वो वैराग्य अपर वैराग्य होता है, एक से छुटकर दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। आप किसके साथ जोड़ रहे हैं, आपके ध्येय वस्तु, जो ध्यान आप कर रहे हैं वो आपका ध्येय वस्तु है, उसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं, ध्यान करते हैं। अब बाद में जो पर वैराग्य होता है, आप जब निर्वितर्क समाधि में पहुंच जाएंगे, आपको बहुत सारी सिद्धियां मिलने लगेंगे। जैसे बहुत सारी चीज भविष्य के बारे में आप जानने लगेंगे, आप कोई कुछ किसको कह देंगे वो होने लगेगा, तो उसमें आप खुश हो जाएंगे, तो उसमें आबद्ध भी हो जाएंगे। जैसे आपको मार्क्स आ गया 75% कोई पेपर में, आप बहुत खुश हो गए, आबद्ध हो गए, अगले एग्जाम में बहुत कम मार्क आ गया। क्यों, वो जो सफलता है उसमें आप आबद्ध कर लेते हैं अपने, फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे ही ये ध्यान प्रक्रिया में कोई भी तरह आप खुश होने लगे, मान लीजिए वही आपकी मृत्यु का कारण बन जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आपको सतर्क कर दिया जाता है कि पर वैराग्य की तरफ आप बढ़ेंगे कैसे, वो सिर्फ निकलने का रास्ता है, उसमें जोड़ने का कोई प्रक्रिया नहीं है। कोई चीज के ऊपर ध्यान करेंगे, आप कोई चीजों के ऊपर ध्यान नहीं करेंगे, आप सिर्फ चैतन्य स्वरूप जो प्रोसेस है अपना, उसी के ऊपर आप रहेंगे, कोई चीज के ऊपर ध्यान नहीं, हर चीज से आप कट जाएंगे। तो फिर आपका निर्विकल्प समाधि, बहुत कम शब्द में कह रहा हूँ, और ये सच भी नहीं लगेगा, डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत क्लास लग जाएंगे, एक एक अध्याय, मतलब ये तो 2 साल लग जाता है पतंजलि योग सूत्र अच्छा से समझने के लिए। हर दिन 1-1 घंटा पढ़ें सूत्र और टीका के साथ, तो लग जाएगा 1 साल कम से कम। तो इसीलिए हम तो थोड़ा सा, एक गूगल मैप में जैसे पिक्चर लेते हैं एक शहर का, कुछ दिखता ही नहीं है, इस तरह का है ये चीज। सिर्फ याद कर लीजिए कि सर्ववृत्ति निरोध जब बन जाता है, वो निर्विकल्पक समाधि कहा जाता है। अब वहां पहुंचने के लिए भक्ति योग के साथ इसका क्या संबंध है, जो हम कल या परसों करेंगे, तो तीसरा क्लास में करेंगे। ये है कि वो कह रहा है कि आप ये मेहनत करते करते वहां पहुंचेंगे, फिर पतंजलि कहते हैं ईश्वरो प्रणिधानात् वा, अच्छा ये करके आप पहुंचेंगे, या
तो आप ईश्वर के साथ अपने को संयुक्त कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। कहने का तात्पर्य है कि ये जो आप एकाग्र स्थिति में या निरूढ़ स्थिति में पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, या पढ़ाई में बहुत हाई स्कोर करना चाहते हैं, कोई बहुत अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट खत्म करना चाहते हैं, तब भी जब ईश्वर प्रणिधान होता है, जो हायर पावर के साथ आप जुड़ जाते हैं। अब आज ही हम सुन रहे थे, एक बहुत बड़े लेखक हैं जिनका देहांत हो गया, वो योगी भी थे, प्रोफेसर भी थे इंग्लिश के, मनोज दास करके, उनको पद्म विभूषण भी मिला है। वो कह रहे हैं कि हम मिराकल के पीछे भागते हैं, कोई गुरु के पास इधर उधर, हमें मिराकल, कोई आदमी बोलता है पत्थर फेंको, वो बाहर ऊपर रुक जाएगा तो मैं मानूंगा कि आपके पास शक्ति है। तो वो आचार्य हंसता है, अरे पागल, ऊपर देखो ना, सूरज ऐसे ही फंसा हुआ है, नहीं गिर रहा है, चांद नहीं गिर रहा है, तो वो आपको मिराकल नहीं लग रहा है, तो मेरे से पत्थर में फेंकूं तो आपको भगवान पे विश्वास आएगा। ये भगवान, आप कह रहे हैं कोई मेटीरियलाइज कर दो मेरे लिए, हर दिन करोड़ों फूल खिल रहे, बच्चे समाज में आ रहे, कोई सफल हो रहा है, कोई विफल हो रहा है, ये एक ही मिराकल है। हमारे जिंदगी अपने आप में एक विचित्र चीज है जिसको हम ग्रहण करना चाहिए, ये अपने आप में एक मिराकल है। यही भगवान की कृति है, और उसको हम समझ पाए, जो विश्व नियंता है, उसका नाम कुछ भी हो, वो अल्लाह हो, जीसस हो, राम हो, विष्णु हो, मुझे कोई मतलब नहीं, एक नियामक है। वो नियामक के साथ जब आप जुड़ जाएंगे तो आपकी शक्ति, आप मान लीजिए जो प्राइम मिनिस्टर आपके दोस्त बन जाएंगे, आपको सब डरेगा नहीं। ऐसे ही जो सर्वशक्तिमान है, उनके साथ आप जब सन्निधि अपना बना लेते हैं, जब उनसे आपको प्यार हो जाता है, वो आपके तरफ थोड़ा देखने लगते हैं, फिर आप ही तो समझ रहे हैं कि क्या होने लगे आपके साथ, बहुत अच्छी चीजें होने लगेंगे, आप प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। ये कह रहे हैं जो ईश्वर कौन है, योग में जो ईश्वर का जो रूप है, वो हमारा हनुमान जी, सीता जी, दुर्गा जी ऐसे नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर कौन है, यहाँ पे ईश्वर का स्थिति है बहुत महागुरु के जैसा। वो कह रहे हैं जो क्लेश है, हमने बात किया 5 तरह का क्लेश है, और कर्म, जितने सारे कर्म, अच्छा कर्म, कुशल या अकुशल, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, विपाक उसका फल, हमारे जो क्लेश है और जो कर्म है, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, उसका फल, और आशय, उसके संपर्क जितना वासना है, उससे जो अपरामृष्ट है, जो संपर्कित बिल्कुल नहीं है, ऐसा पुरुष विशेष, ऐसा चैतन्य स्वरूप ईश्वर है। ईश्वर कौन है, उनको ना राग है किससे, ना द्वेष है, ना कोई कर्म कर रहे हैं। आप हमें समझना चाहिए, जो राग द्वेष इच्छा कुछ नहीं है उनको, और वो मुक्त सत्ता स्वरूप हैं, वो ईश्वर हैं योग के माध्यम में। क्यों, कपिल मुनि को ईश्वर मानते हैं। तो हमारे बाबा जी महाराज करके जो आजकल कह रहे हैं कि जो घूम रहे हिमालय में, वो कहते हैं योगानंद, उनके जो क्रिया योग वाले कहते हैं बाबा जी महाराज जिंदा है, या कोई भी शक्ति, जो व्यक्ति, जो चैतन्य स्वरूप, जो पुरुष स्वरूप, मतलब पुरुष मतलब मेल नहीं है यहाँ पे, जो भी चैतन्य सत्ता है, जो क्लेश, दुख, कर्म, अच्छा या बुरा, और उसका फल, और उसके संपर्कित वासनाएं, उससे फंसता नहीं है, तो हर व्यक्ति को ईश्वर बनने का सुविधा है यहाँ पे। ये ऐश्वर्य से ईश्वर, ऐश्वर्य क्या, ये संपत्ति जिसके पास पहुंच जाए, ये इस तरह का कैवल्य की सिद्धि जिसके पास पहुंच जाए, वो ईश्वर हो जाता है। क्यों, फिर उसको कोई नहीं बांध सकता है, संपूर्ण मुक्त है। और उसके बाद क्या है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि, उसके ऊपर ज्यादा नहीं घुसेंगे। और हम अभी चर्चा करेंगे साधना पाद में कि अच्छा ठीक है, हम उस असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचेंगे, तो वही हमें क्या क्या करना चाहिए, स्टूडेंट पूछेगा टीचर से, तो टीचर उसे कहते हैं पहले तो तुम्हें यम करना पड़ेगा। यम क्या है, यम है जो साधारणतः आपको थोड़ा नियमित करना है, आपको यम नियम अंतिम में आता है। तो बेसिकली आपका कुछ अच्छे अच्छे गुण का आप आधार बनाएंगे आपका साधना का। वो क्या है, एक है अहिंसा, किसी को तरफ हिंसा ना करे, राग द्वेष ना करे। किसके तरफ हिंसा करेंगे तो नहीं हो पाएगा। मतलब आपको तो एक तरह से यहाँ पे उल्लेखित किया जा रहा है कि आपको थोड़ा वेजिटेरियन बनना चाहिए, आप बने ना बने अलग बात है, कि हिंसा किसके तरफ आप ना करें, क्योंकि हिंसक खाद्य है ना, किसका जान जा रहा है, आपको अच्छा लगेगा तो किसी न किसी का जान तो आप ले लेते हैं, तो वो हिंसा हो रहा है, तो यहाँ पे हिंसा ना करें। दूसरा है सत्य, झूठ वूठ मत ना बोले। और तीसरा है अस्थेय, अस्थेय मतलब कोई चीज, आपको चीज किसका उठा कर ना ले, अपने माता जी का भी हो, पिताजी का भी हो, आपका भाई का हो या दोस्त का हो, कोई किताब भी, उसको बिना बताए आप ले जा रहे हैं तो स्थेय हो जाता है, चोरी हो जाता है। बता के लेते हैं तो ठीक है, बिना बताए कोई चीज किसका ना ले।
और फिर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब नहीं है कि सब सन्यासी होंगे, ब्रह्मचर्य मतलब हो गया जो कानूनन संबंध से बहिर्गत संबंध करने का इच्छा, वो ब्रह्मचर्य भंग कर देता है। कोई व्यक्ति शादीशुदा है तो उसका कर्तव्य है कि उसका जो काउंटर पार्ट है उसके साथ वो मिलके रहें, वो ब्रह्मचर्य के खिलाफ नहीं है। ब्रह्मचर्य के खिलाफ है जो नियम नहीं है, आप शादीशुदा नहीं है, कोई गलत काम कहीं पे कर रहे हैं, शादीशुदा करके भी गलत काम कर रहे हैं, वो हो गया ब्रह्मचर्य का हानि। तो इसीलिए वशिष्ठ के 100 बेटे थे लेकिन वो ब्रह्मचारी थे। मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि आपका मोरल यूनिवर्स ठीक है तब तो ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आपका धर्म अर्थ काम मुख्य है। काम क्या है, लेजिटिमेट डिजायर, जो शास्त्र सम्मत इच्छाएं हैं उसका आप पूरा करिए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो निषिद्ध इच्छाएं हैं उसको आप पूरा करने का कोशिश ना करें। फिर अंतिम में है अपरिग्रह, मतलब संग्रह करने का जो मनोवृत्ति होता है, पढ़ाई करे ना करे, लाइब्रेरी से किताब छुपा के ले जाएंगे, वो पढ़ेंगे भी नहीं, रखे रहेंगे पूरा साल भर, एक कार्ड ब्लॉक होके वो किताब, वो ठीक नहीं है। जो पढ़ेगा वो किताब उसको दे दो। तो जो चीज है जो आपका आवश्यकता से ज्यादा है उसको आप छुपा के ले जाते हैं, जैसे लोग कोरोना के मेडिसिन सब खरीद करके छुपा के लगते हैं, वो सब अपरिग्रह। जो जितना जरूरत है उसको ध्यान दीजिए। नियम क्या क्या है, शौच, बाह्य और अंतर, अच्छा कपड़े पहने, नहाए हर दिन, और अपना मन को भी गलत चिंताओं से भर न दें। संतोष, कोई कुछ कर रहा है उसको आप हिंसा ना करें, ईर्षा ना करें। अच्छा वो अच्छे कपड़े पहनिए तो आपको क्या तकलीफ है, उसके उसके अगेंस्ट कोई दो शब्द किसको बताएं, अपने आप को क्या समझते हैं, ऐसे भाषा का प्रयोग ना करें, वो फिर संतोष में नहीं आएगा। फिर आपका ध्यान, योग जो है ना ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स नहीं है। योग जो है ना, माइंड बॉडी सोल इंटरकनेक्टेड रहता है। आप गलत काम करके फिर योग करेंगे कोई फल नहीं मिलेगा। हाँ, क्रिकेट खेल सकते हैं, चोरी भी करके अच्छा क्रिकेट खेल लेंगे, योग में सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जो सिस्टम है, कंप्यूटर साइंस जो पढ़े होंगे उनको पता है, एक होता है सिनॉप्टिक सिस्टम, एक है साइनाप्टिक सिस्टम। जो सिनॉप्टिक क्या है, आप 5 फोल्डर में 5 फाइल है, एक करप्ट हो गया, 4 फोल्डर ठीक रहते हैं। साइनाप्टिक सिस्टम ह्यूमन ब्रेन है, जिसमें एक जगह पे गलतियां हैं, दूसरा जगह भी धीरे धीरे अफेक्टेड होने लगता है। इसलिए आप जानेंगे गलत कर्म का फल जो है कहाँ पे प्रभावित करेगा, पढ़ाई में भी करेगा, रिजल्ट में करेगा, संपर्क में करेगा, आपको नहीं पता है कहाँ पे करेगा, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस इंटीग्रेटेड है। तपह, द्वंद्व सहनम, ठीक है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एसी नहीं है, कोई चीज नहीं है, तभी हम पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सह लेंगे, वो तपस्या है। स्वाध्याय, हर दिन अपना अध्ययन करें, और कुछ थोड़ा सा योग सूत्र हो, भगवत गीता, जो आपकी किताब है, आप मुस्लिम है तो ठीक है, आपका जो अच्छी किताब है ध्यान का पढ़िए, क्रिश्चियन है तो बाइबल पढ़िए, जो आपका धर्म कहता है उसको पढ़िए, थोड़ा सा स्वाध्याय करना चाहिए। और ईश्वर प्रणिधान मतलब सरेंडर। फिर उसके बाद आसन जो आप सीख रहे हैं, आसन है स्थिरम सुखम आसनम। तो आप अपने को टाइट करके कोई चीज करेंगे सक्सेसफुल नहीं होगा, थोड़ा सा लूज करके, रिलैक्स करके, स्थिरम सुखम आसनम। जो आप फिजिकल एक्सरसाइज, जो जिम्नास्टिक्स नहीं है आसन, हर आसन क्रिया के साथ ब्रीदिंग इंटरलिंक रहता है और माइंड शुड बी पीसफुल, तभी वो आसन का फल मिलता है। और बाकी तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होते हैं, जिम्नास्टिक्स होता है, उसमें और आसन में बहुत फर्क होता है। आसन अपना ध्यान का एक सोपान है, एक स्टेज है, फिजिकल फोर्सेस। उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम में बहुत तरह के है। आपका जो रेचक, पहले सांस को छोड़ते हैं, और कुंभक जब रखते हैं अंदर, रेचक, पूरक, कुंभक। कुंभक जो अंदर थोड़ी देर के लिए रखते हैं, ठीक है ना, और बहिकुंभक, अंतर कुंभक ऐसे होता है। अब जब श्वास पूरा छोड़ लेते हैं, पहले तो हम सांस लेके शुरू करते हैं, लेकिन सांस छोड़ के प्राणायाम चालू करना चाहिए। जो अंदर का वायु फंसा हुआ है उसको बाहर निकाल दीजिए, बॉडी को थोड़ा पीसफुल करिए, फिर आप इनहेल कीजिए, फिर धीरे इनहेल आउट एक्सेल कीजिए, आपका अनुलोम विलोम, या तो आप उसको होल्ड करके कुंभक करके आप फिर धीरे से छोड़िए। उसका नियमन है, आपके जो गुरु पढ़ा रहे हैं प्राणायाम, हम अंतिम में 2 मिनट बात करेंगे उसके ऊपर। वो हो गया प्राणायाम। ब्रेथ कंट्रोल और गाइडेड ब्रीदिंग, क्योंकि भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं जो मन जिसका भागता रहता है, पहले आप जो चीजों के पीछे भागते हो उससे मन को हटाओ। नहीं, मेरा मन कंट्रोल नहीं हो रहा है, अच्छा चलो ठीक है, आप शरीर को स्वस्थ करो, एक जगह बैठो, ध्यान करो, नहीं कंट्रोल हो रहा है, फिर भगवान कहते हैं काम करो, आपका प्राण शक्ति जो है, ब्रीथिंग है, उसके ऊपर ध्यान करो, मन स्थिर हो जाएगा। अब कभी भी मन बहुत विक्षिप्त हो रहा है, आपका ब्रेथ को आप वॉच करते रहिए, आप सिर्फ काउंट करिए, 1 2 से 10 करिए,
फिर 1 2 से 10 करिए। ये सिंपल जो बुद्धिस्ट टेक्निक है, खास करके कोरिया और कंपुचिया वगैरह में 1 to 10 ही काउंट कराते हैं। फिर ब्रेथ को आप 1 से 10 काउंट कीजिए, फिर दोबारा कीजिए, फिर दोबारा कीजिए और ब्रेथ लेते रहिए, कोई प्राणायाम की जरूरत नहीं। वो बहुत बिगिनिंग है जिसको समता मेडिटेशन कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, हम वहाँ पे जाएंगे। ये हो गया प्राणायाम का प्रक्रिया। और उसके बाद जो एक उनका है अन्नपान शक्ति, ये समता मेडिटेशन हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा उसके बाद। और क्रिया योग, लय योग, स्वर योग, ऐसे बहुत सारे योग हैं हमारे भी। और प्रत्याहार क्या है कि आप धीरे धीरे आपका जो इंद्रिय को अपने विषयों से परित्याग करेंगे। यह बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो धीरे 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 मन को संकुचित करेंगे। भगवान कृष्ण ने बहुत बढ़िया बताया है भगवत गीता में, हम थोड़ा सा इसको खत्म करके वहां पे 2-3 मिनट उसमें देंगे हम। धारणा क्या है? प्रत्याहार तो विड्रॉल हो गया, फिर धारणा तो एक चीज में, ठीक है। सो देश बंध चित्त से धारणा, तो एक जगह पे लगाएंगे आप धारणा, जो एकाग्र स्थिति में आप करने वाले हैं संप्रज्ञात समाधि के लिए। अब गणेश जी हो, दुर्गा हो, अपने जो अनाहत चक्र हो, आज्ञा चक्र हो, कोई एक चीज के ऊपर आप अपने को स्थिर करना चाहते हैं, अपना फोकस ऑफ माइंड, अपना अटेंशन को, वो धारणा होता है। फिर ध्यान, प्रत्येकतानता ध्यानम, उसका एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। एक तैल धारावत, तैल धारा देखें, एक तेल का धारा आप धीरे से गिराएंगे, कहीं पे रुकता नहीं हो, धीरे धीरे नीचे नीचे आता है। जो शिरोधारा करते हैं ना पंचकर्म में, आप देखेंगे आपके कपाल के ऊपर वो गर्म का थोड़ा सा ल्यूकवार्म ऑयल वो ड्रॉप करते हैं, मेंटल पीस आपको देने के लिए। हेडेक वगैरह होता है उसका रिलीफ मिलता है। अब तैल धारावत मतलब क्या है? आपका जो मन वृत्तियां है, जो मेंटल वेव्स है, वो सडनली स्टॉप तो नहीं करेंगे, ब्रेन विल नॉट फॉल डेड, तो ब्रेन को आप फंक्शन करने देंगे, लेकिन तैल धारावत, वही चिंता, ध्यान में रह रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। और वो जो चिंतन का प्रक्रिया है कोई चीजों के बारे में नहीं है, वो सिर्फ चलते रहता है एक स्ट्रेट लाइन में, वो ध्यान होता है। और फाइनली आपका समाधि स्थिति में आप पहुंचते हैं, ठीक है। कैवल्य सुरित क्या है? जो हेय और उपादान, हेय क्या है? दुख जो है उसको हान कैसे करें, कैसे रोकेंगे। हेय हेतु जो है, जो आपको दुख देता है, वो दुख का कारण जो है अविद्या, उसको आप मिटा देंगे। जो माँ है अपने दुख का, वो है अज्ञान। वो माँ को ही मार दीजिए, बच्चा कहाँ से रहेगा? ऐसे कहते हैं कि आपका जो अविद्या है उसको आप खत्म करेंगे, तभी आपका हो पाएगा। अब हम थोड़ा सा पतंजलि योग सूत्र में बहुत सारे जो है ऑब्स्टैकल्स, उसका हम तो चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा टाइम बचा है और 10-15 मिनट के अंदर मैं थोड़ा सा आपको ब्रॉडली आपको फिर ले जाऊंगा कि कुछ सम बेसिक एडवाइस जो आप छात्र लोग हैं, खासकर हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट योर मेडिटेशन। जो आपको ऑब्स्टैकल्स हैं, योग सूत्र जो आप अभी जो योग सीख रहे हैं, व्हाट आर द ऑब्स्टैकल्स? एक तो व्याधि, कोई भी डिजीज हो गया, फिर आप ध्यान प्रार्थना कर नहीं पाते हैं, so you must be healthy, remember. So building your immunity system, not bodybuilding, okay? Bodybuilding is good, but what is important is that you have a good immunity system. तो व्याधि से छुटकारा लीजिए। दूसरा है ध्यान, ये भी एक बाधक है। ध्यान क्या है? आलस्य, लेजीनेस, कुछ करने का मन नहीं करता है। लॉकडाउन पीरियड है, लोग टीवी और इंटरनेट और यूट्यूब में समय बर्बाद करते हैं, तो ये एक तरह से वो डिस्ट्रक्टिव है। दूसरा क्या है कि आलस्य, ध्यान तो हो गया इनर्टनेस, कुछ करने का मन नहीं करता है। और आलस्य क्या है? सिर्फ आप बैठो, खाओ, टीवी देखो, मम्मी से गप मारो, पापा से, अरे भाई बहन से लड़ाई करो, दोस्तों से बात करो, लेकिन कोई पॉजिटिव प्रोडक्टिव काम नहीं करना चाहते हैं। रेजिस्टेंस टू डू वर्क, और प्रमाद भी उससे, अविरति, अविरति क्या है? जो गलत चीजें आपके एडिक्शन से है उससे आप विरत नहीं हो पा रहे हैं, वो है अविरति। जो गलत एडिक्शन है उससे आप विरत नहीं हो पा रहे हैं, छुटकारा नहीं ले पाते हैं। और एक है भ्रांति दर्शन, जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी है, अच्छा योग, फिर आपके दोस्त बोलेंगे अच्छा योग सीख रहा है, उससे करने से क्या है? कोई साइंटिफिक तो नहीं है आजकल जैसे चल रहा है कि जैसे आयुर्वेद, भाई अपने आप वो भी एक साइंस है, आपका एलोपैथी भी साइंस है। आयुर्वेद आपको जो एलोपैथिक देता है दे नहीं पाएगा, और जो एलोपैथी है जो आयुर्वेद दे रहा है उसको भी वो नहीं दे पाएगा। अलग अलग रास्ता है ना, हर चीज का अलग अलग उपाय देता है। लेकिन आपको कुछ योग से क्या मिलेगा? अरे वो तो ऐसे ही है, बिजनेस है।
क्या बिजनेस नहीं है? आपका जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी बिजनेस है, और हर लोग तो कुछ रोटी कमाना चाहता है, लेकिन वो उपाय है, उपेय नहीं है। उपेय क्या है? लक्ष्य जिंदगी का नहीं है। लक्ष्य जिंदगी का है अर्थपूर्ण जिंदगी आप कैसे गुजार पाएं और कुछ आनंद, सच्चा आनंद ले पाए जिंदगी, वो है आपके उद्देश्य। बाकी चीजें तो ऐसे प्रोसेस में आते हैं। तो भ्रांति दर्शन, गलत तरह से फॉल्ट फाइंडिंग, योग करने से क्या हो जाएगा? समय नष्ट होता है, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये भी कहने वाले लोग हैं, उससे दूर रहिए। दूसरा क्या है कि अलब्ध भूमिकत्व, मतलब जैसे ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में हो रहा है। कोई नया सब्जेक्ट जब आता है, आप देख रहे होंगे कि आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन 5 मिनट भी बैठ नहीं सकते, आपका सक्सेस नहीं होता है, आसन में सक्सेस नहीं होता है, या जो यम नियम प्राणायाम है पहला स्तर में ही आपका सक्सेस नहीं होता है। अलब्ध भूमिका, आप जो एकाग्र में पहुंचेंगे फिर जाएंगे संप्रज्ञात समाधि में, एक ही जगह आप फंसे रहेंगे तो ऊपर कैसे जाएंगे? आपको कोर्स खत्म करना है तो पेपर एक के बाद एक खत्म करना पड़ेगा आपको। आप अलब्ध भूमिकत्व को बचे रहे, आपको जो भूमिका खत्म करना है उसको करके आगे बढ़िए। तो सेकेंड ईयर का कोर्स है तो पढ़ लीजिए अच्छा से, थर्ड ईयर आ जाएगा फिर वो बैकलॉग रह जाएगा, नहीं कर पाएंगे। तो अलब्ध भूमिकत्व ये एक बाधक है। और फिर अनवस्थित तत्व, बैठते तो हैं लाइब्रेरी में, ध्यान करने बैठते हैं, लेकिन 2 मिनट के बाद थोड़ा फोन चेक कर ले, कोई दोस्त से थोड़ा बात कर ले, या थोड़ा घूमने चले जाएं, ये डिस्टर्बेंस होता है, रेस्टलेसनेस होता है, इसमें आप टिक नहीं पाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस टू ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑल। वी ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, हम बहुत अच्छे काम करना चाहते हैं जिंदगी में, लेकिन उसको रख टिक मतलब होल्ड नहीं कर पाते हैं। आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अच्छा कविताएं लिखते हैं, लेकिन आप चालू करते हैं कविता, 2 दिन लिखेंगे फिर खत्म हो जाएगा, फिर आगे नहीं लिख पाएंगे। डायरी लिखेंगे 2 दिन लिखेंगे, शेर शेयर करेंगे 2 दिन करेंगे, डांस सीखेंगे भी 2 दिन करेंगे, उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है, समय बर्बाद होता है। इसीलिए आप ये देखेंगे कि अवस्थिति को कैसे आप हम हाथ में लें। ऐसा ना कि 2 दिन करके छोड़ दे। 15 दिन का योग प्रक्रिया हो गया, लेकिन आप अपना लें कुछ चीज जो आप कंटिन्यूसली करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूसली करने का सोचिए, पढ़ाई हो जो भी हो, अच्छी चीज है, उसको एक हैबिट बनाइए। हैबिट धीरे धीरे आपका डेस्टिनी में बदल जाएगा, और आप बहुत खुश होंगे कि ये चीज मैंने जिंदगी में सीखा था या किया था। और आगे अंग मेजत्वम क्या है? आप ध्यान करने बैठते हैं, कुछ चीज करने, आपका हाथ हिलता रहता है, आपको टाइट लगता है, स्ट्रेसफुल होता है। अब जब आसन क्लास में ये सब हो रहा होगा, आपके गुरुजी आपको बता रहे होंगे कैसे आपको स्थिरता लाना है, ये भी एक का बाधक है। फिर श्वास, आपको प्राणायाम में अंदर लेने वक्त आप बाहर छोड़ दे, श्वास बाहर छोड़ने के समय अंदर ले ले, ये सब भी विशृंखला जो है वो भी बाधक बन जाते हैं। इसीलिए आप आंसर क्या है, कैसे बचें, कैसे पहुंचे? तो पता है, इसमें एक बड़ा सिंपल सा आंसर देते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों चीज ही चाहिए। डिटैचमेंट चाहिए, जो आपका मन का जो क्लेश है आपको खींच के इधर उधर भगाता रहता है, उससे बचो और अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो। हम उसके ऊपर कुछ चीजें जो मूलतः टुवर्ड्स द एंड, अनदर 10 मिनट्स आई विल वाइंड अप, तो आपको आप थोड़ा धैर्य के साथ सुनिए। एक तो है आप एक मेक ए डेली प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम, कभी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता है। आपको कोई बताएगा कि ये टाइम, अच्छा ये कर रहे हो तो टाइम वेस्ट है। जिंदगी में बिना टाइम वेस्ट किए हुए कोई आदमी कुछ अच्छा नहीं पाया है। जो बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता है वो ना जिंदगी देता है म्यूजिक के लिए। जो अच्छा पेंटिंग कर रहा है जिंदगी दे देता है उसके लिए। जब आप जिंदगी किसी चीज को दे देते हैं तब वो आपको जिंदगी देने लगता है। ये आप सोचिए, कोई भी चीज है, पढ़ाई है, कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता है, यू वांट टू बी द बेस्ट, वर्ल्ड ओवर देयर इज अ स्टडी, anybody who can give about 10,000 hours of his life to a particular subject matter will be a world ranking expert in that subject. उसके ऊपर ग्लोबल साइकोलॉजिकल रिसर्च हो सकता है। कैन यू गिव अबाउट 10,000 आवर्स? कैलकुलेट कीजिए कितना साल आप पढ़ेंगे उसको। कम से कम 10 साल तक लगे रहेंगे, 1,000 आवर्स पर ईयर आप दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं। 10 साल के बाद आप कोई भी फील्ड में है, कंप्यूटर है, फिलोसफी है, इकोनॉमिक्स है, यू विल बी अ टॉप रैंकिंग एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो 10,000 आवर्स आपको देना है, डिसिप्लिन वे में देना है। देन remember one thing, that find out a proper place, you see. So here I'll refer to the Sashta Adhyaya of Bhagavad Gita. So एक तो है आपको बहुत केयरफुल रहना है। आपके पास बहुत डेंजरस डॉग एक है जो आपको जिंदगी बचा भी सकता है, आपको काट भी सकता है, वो आपका मन है।
इसलिए भगवान कहते हैं उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मना वसादयत आत्मेव ही आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मनः। आपका सबसे बड़ा दोस्त आपका मन है और सबसे बड़ा दुश्मन मन है। जब मन को आप सुशिक्षित कर लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, बेटे ये से बिहेव ना करना, अपने माँ अपने बेटे को सोशलाइज करती है। अब बेटा नहीं मानता है तो फिर वो साथ में उसको पार्टी वगैरह नहीं लेती है। जो बेटा माँ का बात को बढ़िया से समझ लेता है तो वो माँ अपने बेटा को साथ में छोटे अवस्था में भी सब पार्टी में ले जाती है, मीटिंग में ले जाती है। क्यों? उसको पता है ही विल बिहेव प्रॉपरली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so what I'm suggesting is that if you can educate your mind, you can train your mind to behave itself, then your mind will be a good friend. Otherwise, it will be a bad enemy. That is one important thing. And therefore, what is he saying? That there are a couple of key advices. One is that you must have identify a proper clean place for your meditation in yoga. Sucho they say, that Bhagavad Gita says, it should be a clean place. You cannot sit in a marketplace and meditate. And try to fix a certain time, that early morning I'll do it at 5 o'clock or I'll do it at 7 p.m. Then you should always do it at that time. The body will get trained. So the moment you go there, it will become peaceful. You don't have to keep changing, okay, if you want to start doing it. And then always start with a शांति मंत्र और प्रेयर। जो आपके आराध्य देवता हैं और अपने माता पिता को प्रेयर कीजिए। कोई गुरु है तो उनका नाम लीजिए। आपके तो बहुत बड़ा गुरु, जो मेन गुरु आपकी माँ ही है, आपको पहले वो सब सिखाती है। तो पहला जो गुरु आपके माँ है, आपका माँ को आप प्रणाम कीजिए। फिर देखिए शंकराचार्य कह दिए हैं संन्यास लेने के बाद अपने बाप को देखो तो सन्यासी प्रणाम नहीं करता है, सिर्फ माँ को प्रणाम करता है और गुरु को प्रणाम करता है। तो हमारा ट्रेडिशन ही रहा है कि आप अपना जो पहला गुरु हैं, माता जी को मन में स्मरण करें, गुरु को स्मरण करें। आपके जो इष्ट देवताएं हैं आपका धर्म के अनुसार उनको ध्यान करें। योग कोई भी आदमी कर सकता है, इसमें कोई धर्म वर्म का कोई संबंध नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो उसमें और वहाँ पे भगवान के बीच में वाई यू शुड डू अ प्रेयर एंड दैट इज वेरी क्लियरली मेंशन, यू नो, इसे प्रसाद आत्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम मच्चितो उसका मन मस मुझ में वो लगा देता है, भगवान कहते हैं। तब उसका ध्यान ज्ञान सफल होने लगता है। युक्त आसित मत पर, और बैठता भी ध्यान है मत पर। किसके बारे में सोचता है? वो मेरे बारे में सोचता है, ध्यान करता है। भगवान कहते हैं माया से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। माया का मालिक कौन है? मैं हूँ। ऑफिस में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, तुम काम नहीं कर पा रहे हो, किसके पास जाओगे? जो आपके सीईओ हैं, प्रिंसिपल, उनके पास जाओगे। सर बहुत लाइब्रेरी में डिस्टर्बेंस होता है। और हमारा जो सीईओ है ये संसार का कौन है? विश्व नियामक भगवान है। तो आप जब उनके शरण में जाते हो तो जिंदगी के डिस्टर्बेंस से, प्रभाव से आप धीरे धीरे छुटकारा पाओगे। काम से भागोगे नहीं, अपना काम करोगे, वीरता पूर्वक करोगे, सुनिश्चित मन के साथ करोगे। लेकिन जो डर है, जो भय है, जो अस्थिरता है, उसको आप गुड बाय कर देंगे, क्योंकि आप ध्यान के मार्ग में बढ़ रहे हैं। और उसमें और भी थोड़ा सा साइड लाइन में आपको बताया गया, युक्त या हार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु। सो यू नो, युक्त आहार, खाना पीना भी थोड़ा सा संयमित करें। अब बहुत ऑयली या बहुत मसालेदार या टोटल नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत अच्छा नहीं। और गलत जगह में घूमना, मैं यहाँ पे देखता हूँ कुछ योगा स्टूडेंट्स तो हैं, लेकिन यहाँ पे आते हैं लड़के लड़की दिल्ली से आते हैं और गंगा के किनारे जहाँ पे सब सन्यासी ध्यान करते हैं, वहाँ पे वो लोग रात को 12 बजे बैठ के दारू और गांजा पीते रहते हैं। अब देखिए कौन सा ये ध्यान हुआ। अब रात को 12 बजे दारू पी रहे हैं, कोई गलत काम हो गया, दारू पी के लड़का लड़की हैं, कोई लड़का ने कोई गलत काम कर दिया, फिर रात को पुलिस के स्टेशन जाते हैं लड़का लड़की अगले दिन। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होता है। तो अपने आप को ऐसा कोई गलत विहार का आप अपने को इंस्ट्रूमेंट, हथियार ना बनाएं। आपकी जीवन बहुत मूल्यवान है। अब सबसे मूल्यवान जिंदगी में कौन है आपके लिए? आप अपने हैं। तो अपने को आप मूल्य नहीं देंगे तो दूसरा कोई मूल्य नहीं देगा। ये याद रखिए, ये बहुत मूल्यवान चीज है। युक्त चेष्टा से, और चेष्टा करते रहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, और आप बिल्कुल नहीं सोएंगे, एक दिन सोएंगे दूसरा दिन रातों भर पढ़ते रहेंगे, ये भी गलत है। थोड़ा बैलेंस होना है। योग भवति दुःखः, ऐसे योग करोगे तो आपका दुख का वो नाश कर देगा। अब कैसे आप बैठोगे, ध्यान करोगे? वो कहते हैं फिर यथा दीपो निवासस्तु निंगति समुपास्मृतः, जैसे हवा हटा दें, एक दिया जलाएं,
वो हिलता रहेगा क्या? नहीं, शांत रहेगा। जैसे आप अपने मन के जितने सारे वायु हैं, अपने जो थॉट प्रोसेसेस हैं, उसको हटा दें। मुझे ये चाहिए, वो चिंताएं हटा दें, तब मन स्थिर हो पाता है। आपके पास 50 चिंताएं हैं, अब कुत्ता के, अब सोचिए आपके पास एक कुत्ता है, उसको आपने बांध लिया है और चारों तरफ खाने का चीज रख लें, आप उसको खींचने दूसरी तरफ, वो आएगा? आपको काट लेगा। मन के चारों तरफ आप उसका विषय या उसका जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर से आप चारों तरफ रख के मन को आप संयमित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा राग द्वेष से मन को मुक्त करना पड़ता है, मन को थोड़ा सा शांति देना पड़ता है, तब वो बात मानने लगता है। इसीलिए आप देखेंगे घोड़ा का चारों तरफ आंख में लगाया जाता है, क्यों? टनल विजन। बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिशा में घोड़ा देखता है तभी भागता है, इसलिए तो आंख में उसका लगा देते हैं। बहुत लेसन है कि डिस्टर्बेंस रहते रहेगा आपके इंद्रियों में, तो फिर आंख, मन, कान, चारों तरफ गाना के तरफ कान, यूट्यूब के तरफ या फेसबुक के तरफ आंख, और दोस्तों के तरफ फोन के माध्यम से मुंह, फिर पढ़ाई कहाँ से हो पाएगी? आप ये सब जो द्वार है ना, आपके जो खिड़कियां हैं, उसको बंद करो, मन में फिर ध्यान हो पाएगी, पढ़ाई हो पाएगी, ये भगवान कहते हैं। तो मतलब आपके मन में और भी होगा कि मेरा मन तो स्थिर नहीं हो पा रहा है, मैं पढ़ाई कैसे करूं? भगवान कहते हैं चिंता मत करो। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततो ततो नियम्येतत् आत्मन्येव असंनयेत्। डरो मत, मन तो भागेगा ही, उसका काम ही यही है भागना। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ फिर भाग गया ना, हाँ ठीक है भागेगा, टेंशन क्या है, मन तो भागेगा ही। आपको पता है क्या कहते हैं मन ध्यान में आपको कैसे सक्सेसफुल होना है? कहानी आपको बताता हूँ, और वो कहानी बता के एक दो शब्द बोल के मैं खत्म करूंगा। एक चीज है, एक चिड़िया जो है ना, वो अंडा दी थी, एक माँ मतलब एक पक्षी है, वो अंडा दी थी, और अंडा को समुद्र का जो वेव्स आके पानी में धो के ले गया समुद्र। तो वो बहुत गुस्सा गई, बोली अच्छा मेरे बच्चे को, मेरे अंडे को तुमने चुरा लिया, मैं तुम्हें सुखा दूंगी। और वो अपने चोंच से पानी एक एक बिंदु लेके दूर फेंकने लगी। आप वो बोले क्या कर रहे हो? बाकी दोस्त बोला ना नहीं, मुझे समुद्र को सुखाना है, ये बदमाश जो है मेरे अंडे चुरा लिया, और मेरा बच्चे कहाँ से मैं पैदा करूं? तो फिर बाकी पक्षियां जो उसके दोस्त हैं वो बोले चलो हम भी तुम्हें साथ देते हैं। खुश करने के लिए मजाक में वो लोग भी पानी उठा उठा के फेंकने लगे। नारद जी जा रहे थे, बोले क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं समुद्र से दुश्मनी हो गई, हमारे अंडे चुरा लिया वो, तो हम जो समुद्र को सुखाने में अभी लग गए हैं। बोले समुद्र को तुम लोग सुखा दोगे ना? क्यों ना, छोटे छोटे चिड़िया, तो उससे क्या होता है? हमारा संकल्प शक्ति है, हमने योग सूत्र पढ़ रखा है, हम तो अभी सुखा देंगे समुद्र को। फिर नारद हंसे, लेकिन दया आ गया उनको। वो गरुड़ जी को फोन लगाए, बोले गरुड़ जी आप तो पक्षी कुल के राज हैं ना, हाँ आपको पता है वो समुद्र के साथ ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, समुद्र उनका अंडा चुरा लिया। तो फिर बैतनीय और गरुड़ जी आगे, बोले समुद्र जी क्या बात है, आप तो हमारे गुरुजी भगवान विष्णु के आप ससुर जी हैं, आप क्यों वो दुश्मनी कर रहे हैं हमारे बच्चों के साथ? उनका अंडा लौटा दीजिए, आप नहीं लौटाएंगे तो मैं आपको सुखा दूंगा, क्योंकि विश्व नियंता भगवान विष्णु का मैं वाहन हूँ। फिर समुद्र डर के मारे अंडा लौटा दिया। कहने का मतलब, आप जब अपने चेष्टा में जुटे रहेंगे, थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपका जो विभ्राट कर रहा है, जो बाधक बन गया है, आपके जो वीकनेसेस है, आपको फेल हो रहे हैं कोई एग्जाम में, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, नौकरी नहीं मिल रही, ये जितने सारे बाधाएं हैं वो हार जाएंगे। क्यों? ईश्वर का कृपा आपको प्राप्ति हो जाएगी, कृपा भी आपको मिलेगी। क्यों? आप साधक हैं, लगे हुए हैं, तो आपको मिलेगी, ये विश्वास के साथ। इसलिए तो तीन चीजें, चार चीज मैं कह रहा हूँ। जब आप मेडिटेट करने के लिए बैठ रहे हैं तो एक अच्छा आसन लेके बैठिए, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है ना, एक सॉफ्ट होना चाहिए। एक कंबल ले लीजिए या टर्किश टॉवल 2 फोल्ड करके, ताकि आपको पीड़ा ना हो। और बैठने में जब लेग्स में तकलीफ हो रहा है, मैं आपको आपके गुरुजी जो सिखा रहे हैं बता रहे हैं, अपने दोनों लेग को किताब का स्टैंड, जैसे बुक स्टैंड है, ऐसे करके आप उसको सजाइए अपना 2 फीट को, तो आपको पेन नहीं होगा लेग्स में, आप बैठ सकते हैं 45 मिनट्स। और थोड़ा प्राणायाम कीजिए, पहले वार्म अप करिए, थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए पहले, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम या कपालभाति, ये सब करके फिर शीतली थोड़ा सा करके जो खींचते हैं, और भ्रामरी करके छोड़ते हैं, ये सब करके मन को थोड़ा सा 10 मिनट आप थोड़ा डिसिप्लिन कर दीजिए। फिर अपना ब्रेथ को थोड़ा काउंट कीजिए। जब डिसिप्लिन हो गया उसके बाद आप ध्यान लगाइए 10 मिनट 15 मिनट बिगिनिंग में थोड़ा सा, और लय विक्षेप से बचिए। 2 थ्रेट है, या तो आपको नींद आएगी या तो दिमाग आपका भागेगा। जब भागेगा आपको अपने ब्रेथ पे ध्यान देना है,
नींद भी नहीं आएगी आपको जब ब्रेथ में, और आंख पूरा बंद ना करें। थोड़ा सा आप शिव जी को देखें या बुद्ध जी को देखें, उनके आंख पूरा बंद नहीं होता है। क्यों? तो ध्यानस्थ हैं, सोए नहीं हुए हैं, इसलिए पूरा आंख बंद करेंगे नींद आ जाएगी। आंख में थोड़ा सा गैप छोड़िए, आप ध्यान कीजिए, तब ध्यान लगेगा, लेकिन सोइएगा नहीं या मन को भगाएंगे नहीं। ठीक है? और आप जब इंटरनल रेजिस्टेंस, आपके जो मन के जो बाधक हैं, ये सब कौन है? तो ये है आपको जो बैड गलत चिंताएं हैं। इसीलिए आप जब बैठते हैं थोड़ा सा संकल्प कीजिए कि मुझे आज ये करना है, भगवान मुझे शक्ति दे, प्रेयर के साथ शुरू करना है। ठीक है? धीरे धीरे ये ब्रेथ कंट्रोल से आपको थोड़ा सहूलियत मिलेगी। दो चीजें उसमें कहना चाहता हूँ कि जो आपका बुद्धिस्ट मेथड है उसमें एक समता है और एक कहते हैं विपासना है। समता में क्या करते हैं, वो ब्रेथ को सिर्फ वॉच करते हैं और मन को स्थिर करते हैं, कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करते हैं। वो श्रीलंका, साउथ कोरिया और आपका म्यांमार, ये सब थेरावेदा बुद्धिज्म है। और तिब्बतन वगैरह में क्या है, थोड़ा वो विपासना यानी इनसाइट मेडिटेशन करते हैं। आपका श्रीलंका में भी हुई है। इनसाइट मेडिटेशन क्या है? यू वॉच योर थॉट्स। अच्छा, मेरे मन में ये आ रहा है, अच्छा अभी मैं ये रहा हूँ, और जब भी गलती होती है, थॉट्स होता है, आप हंसिए, अच्छा फिर आ गया थॉट्स। कभी भी हार मत मानिए, कभी भी हारिए मत। ये आप ध्यान करते 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 धीरे 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 आपको संतुष्टि मिलेगी। रिमेम्बर कि आपका 3-4 चीज जो सक्सेस के लिए ध्यान लगाने में, याद करिए कि जो आप स्टूडेंट है या पढ़ाई कर रहे हैं या शादी में हैं, बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं, आप ध्यान पता है क्या है? घर सफाई है एक तरह से। घर सफाई उसको आप अच्छा से कर पाएंगे तो यू विल फील रियली गुड, यू विल फील गुड बिकॉज देयर इज ए बिट ऑफ क्लीनिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस। इट्स लाइक डस्टिंग योर कॉन्शियसनेस, घर जैसे साफ करते हैं। इसीलिए एक तो हैबिट फॉर्म करने की कोशिश कीजिए और एक श्रद्धा होना चाहिए। आप इसको अविश्वास ही करेंगे, क्वेश्चन लगाते रहेंगे, तब कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है? और broadly, when we go to our next session, and there we will pay more attention to the karma yoga, where it will be very useful for the students। क्या आप लगे क्या महाराज हमें आप सिखा रहे हैं ध्यान करना तो पढ़ाई छोड़ दें? तो उसके ऊपर हम चर्चा अगले क्लास में करेंगे। कोई भी सवाल हो तो मैं सवाल लेना चाहूँगा 5 मिनट के लिए, और वहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कोई सवाल है, कोई स्टूडेंट से कोई जानना कुछ चाहता है, खुल्लम खुला वो आपको मैसेज करें, आप पूछ सकते हैं या तो सीधे पूछ सकते हैं। Yes, please. Anyone, if there is any question, you can type in the chat box. In the meanwhile, Swamiji, thank you very much for such an enlightening discussion. You discussed deep spiritual topics in such a lucid and interesting manner. I'm sure the participants must be deeply benefited by the things. Focused on Patanjali Yoga Sutras, today's session was very appropriately guided us by emphasizing on importance of controlling mind through meditation, concentration, and practice. It was really very beneficial, particularly to the youth, where you told them to connect, to establish a connection with the Almighty that will lead them to the correct path. Sir, you discussed 8 limbs of yoga in a very interesting and impressive manner, which I'm sure all the participants must will be practicing and following in their the further pursuits. Thank you very much, sir. Yes, if there is any question, you can straight away ask or type in the chat box. Sir, yes, there is a question. There is a query from a student, sir, since your topic was Yes. focused on concentration. So this student is saying, sir, मुझे लगता है सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ लूं, जिसके कारण एक भी नहीं होता। So I think हाँ, yes, ये sir, बहुत concentration. अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। एक चीज है, ये आपका पढ़ाई का भी सवाल है और योग का भी सवाल है। एक समय में हर चीज नहीं होता है। एक आपका माइंड के ऊपर बहुत रिसर्च हो सकता है, कोई भी माइंड कोई भी एक चीज के ऊपर ही वो फोकस हो सकता है, 5 चीज नहीं कर सकते। आप गाना सुन रहे हैं तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई कर रहे हैं तो गाना नहीं सुन पाएंगे। आपको लगेगा कि आप दोनों कर रहे हैं, तो एक एक क्षण के लिए आप पढ़ रहे हैं और एक क्षण सुन रहे हैं। जिस क्षण में सुन रहे हैं उस क्षण में ध्यान किताब से हट जाएगा, जिस क्षण में पढ़ रहे हैं उस क्षण में म्यूजिक को सुन नहीं पाएंगे। अतः
आपको एक डिसिप्लिन प्लान कीजिए। आप जो है ना 5 चीज में, अब 2 नौवा पे पैर रखने पर आदमी क्या होता है, पानी में डूब जाता है। इसलिए एक तो आप थोड़ा सा डिसिप्लिन कीजिए, और आपके जो एकेडमिक काउंसलर है, जो टीचर हैं, पहला तो आप डर से दूर हो जाइए। मुझे लग रहा है आप बहुत स्ट्रेसफुल हो रहे हैं और पढ़ाई को लेकर काफी चिंतित हो रहे हैं। वो सब छात्र जीवन में ऐसे होता है। वो क्यों होता है पता है? आप बहुत आलसी होंगे थोड़ा सा बिगिनिंग में, या तो साल के बिगिनिंग में आप बहुत धीरे से पढ़ाई करते हैं, या पढ़ाई भी करते हैं तो थोड़ा ज्यादा चिंतित रहते हैं। एक तो है, वो हम अगले क्लास में उसका चर्चा करेंगे। आप कोई भी चीज में सक्सेस आप चाहते हैं तो आप देखेंगे वो पाठ आपको सबसे बढ़िया याद है जिसमें मुझे एग्जाम में कितना मार्क आएगा ये सवाल आपको ट्रबल नहीं कर रहा था। आप जब फल के बारे में सोचेंगे तो फिर कार्य ठीक से नहीं हो पाता है, उसमें गलती हो जाता है। आप जैसे माँ आपकी खीर पका रही है, वो कभी नहीं सोचता है कि ये खीर खा के मेरे बच्चे या मेरे दोस्त कितना खुश होंगे, तो खीर जल जाएगा फिर, क्योंकि वो जब पकाती है वो बढ़िया से पकाती है। टीचर्स भी आपको जब पढ़ाते हैं मेरे पढ़ाई से क्या स्टूडेंट्स खुश हैं ये सोचने लगे तो फिर गलतियां होने लगेगी क्लास में। कोई भी चीज में फल का चिंता ना करें, फल जो आएगा आएगा। हम अपना कर्म को कैसे अच्छा से करेंगे वो हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो आपको मैं बहुत सरलता पूर्वक कह रहा हूँ, पढ़ाई करें जो भी शुरू कर रहे हैं। हाँ, एक ही किताब को बैठ के 15 दिन बैठें और कुछ ना पढ़ें और बाकी कोर्स आपको बहुत टेंस फिर और कर देगा। इसलिए एक टाइम टेबल बनाइए। आप अपने को कहिए मैं आधे घंटे के लिए इसको पढ़ूंगा और क्या मुझसे हो रहा है सेट कीजिए टारगेट। डायरी बनाइए, अपना प्रिपरेशन डायरी, उतना टाइम लीजिए, देखिए क्या आप अपना पाते हैं। और रियलिस्टिक एक्शन प्लान बनाइए। आप एक चींटी सोचे कि मैं हाथी को खा लूं, क्या खा पाएगी? वो नहीं खा पाएगी। तो आप इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए, वो आप पूरा ब्रेक डाउन कर दीजिए। पूरा आप किताब को लेके मत डरिए। आप अपने को बोलिए कि मुझे ये अध्याय 2 दिन में खत्म करना है। आप उस पे ही ध्यान दीजिए, बाकी आगे का मत सोचिए। वो ध्यान दीजिए, बढ़िया से हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। थैंक यू हाँ वेरी मच। हाँ, अच्छा थैंक यू वेरी मैडम। मच जी सर जी। हाँ, मैं स्वामी जी को बच्चों की तरफ से जो तरह तरह के सवाल आता है उनका मन में, तो मैं भी प्रेजेंट करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स। और जनरली जो बच्चे मेरे से भी पूछते हैं, और सबके घर पे भी बच्चे हैं, बच्चे जनरली यही चीज़ पूछते हैं, क्योंकि हम उनको कहते रहते हैं कि भाई ये फलाना किताब बच्चा, ये बहुत अच्छा किताब है योगानंद जी का। बाकी जितना भी बच्चे किताब तो पढ़ते रहते हैं। पढ़ने के बाद बच्चा नेचुरली बच्चे यही सवाल करते हैं, तो सब में यही लिखा हुआ है कि भाई कंट्रोल योर डिजायर्स। तो क्या एम्बिशन को भी कंट्रोल करना चाहिए? नंबर 1 सवाल आता है। तरह तरह की चीजें खाने का जी करते हैं, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। ये जो साधारण से सवाल है, बट बच्चे उसको डिफरेंट टाइप से प्रस्तुत जरूर करते रहते हैं स्वामी जी। हाँ, तो ये वो लेकिन बहुत। आज या तो हाँ, तो 2 चीज है। क्या डिजायर का कंट्रोल करने का मतलब ये हुआ कि अपने एम्बिशन को कंट्रोल करें, मतलब एम्बिशन जिंदगी में न अपनाएं तो फिर हम जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आपको एक चीज बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो डिप्रेस्ड होते हैं अपनी जिंदगी में, उसका कारण होता है वो एम्बिशन क्या होता है, उसको कैसे अपनाना होता है, उसे कोई ढंग से उन्हें काउंसलिंग नहीं करता है। अब मुझे बताइए, हम सबको चाहिए मोक्ष, सबको चाहिए आत्मज्ञान, जो भी सन्यास लेता है। अब वो आत्मज्ञान क्या है वो नहीं समझेगा, उसको कैसे साधना करना है वो उसका ज्ञान को नहीं लेगा। वो क्या चिंता करेगा, अच्छा मैं रविशंकर जैसा 10,000 एकड़ का एक आश्रम और 10 लाख शिष्य, बहुत अच्छे परिवार से, जिसके पास बहुत मर्सिडीज गाड़ी हो और मुझे 2-3 हेलीकॉप्टर और एक फ्लाइट और सब चार्टर्ड फ्लाइट, ये सब वो कब मिलेगा, कितना ध्यान करने पर मिलेगा, क्या करने पर मिलेगा? पागल तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये एम्बिशन नहीं है। फल कामना और एम्बिशन में बहुत फर्क है बच्चे जो भी सुन रहे हैं। फल कामना एम्बिशन नहीं है। हाँ, आप पढ़ाई कीजिए, आप नौकरी करेंगे, एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, आप सोचेंगे अच्छा मुझे ये फिल्म स्टार जैसा एक लड़का या ये फिल्म स्टार जैसा एक लड़की कैसे मिलेगा? पागल हो जाएगा, एग्जाम तक भी नहीं पहुंचेगा। तो पहला चीज है, फल के बारे में ना सोचें। फल कामना हमारे लिए पाप है, हमारे धर्म में कहा गया है फल कामना जितने लोग करते हैं वो लोग मूर्ख ही रह जाते हैं और उनको वो चीज मिलता भी नहीं है। आप देखिए जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनके जिंदगी को आप अध्ययन कीजिए।
स्टीव जॉब्स हो, सत्या नाडेला हो, जितने लोग हैं उनको पूछिए, मोदी जी को पूछिए, क्या वो सपना देखे थे मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा? वो चाय बेच रहे थे, जो काम मिल रहा था उसको ढंग से कर रहे थे। जो चीज आपको मिला है इस समय में उसको ढंग से कीजिए और भगवान द्वार खुलते रहेंगे, एक द्वार से दूसरा द्वार खुल जाएगा सफलता का, और आगे बढ़ते रहेंगे। आप जो चीज को आज बहुत प्राधान्यता पूर्वक सोच रहे हैं, हो सकता है कल वो नौकरी मार्केट में हो ही ना। मैं एक बार वॉशिंगटन में जा रहा था, एक व्यक्ति जो मेरा ड्राइवर था वो मुझे बोला आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा मैं वर्ल्ड बैंक में काम करता हूँ, ऑफिस में जा रहा हूँ। बोला मेरी बीबी भी वहाँ काम कर रही है। बोला वो क्या करती है? वो कोई इकोनॉमिस्ट की नाम लिया, वो उनकी बीबी जो है शी वाज हाईली क्वालिफाइड, पीएचडी हार्वर्ड से, वो वर्ल्ड बैंक में थी और वो टैक्सी चला रहे थे। हम बोले हाउ कम यू आर डूइंग दिस जॉब? ही सेड लुक आई एम आई एम अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, आई वाज टीचिंग इन यूनिवर्सिटी एंड देन आई वाज फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ऑफ वायरलेस। अब वो टेक्नोलॉजी 80s में अर्ली 90s में बहुत पॉपुलर था, वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया, मुझे और कोई शिक्षा नहीं थी, तो मैं मार्केट से बाहर हो गया। तो मुझे कहाँ जाना है? मैं लौट के, मैं ईरान से हूँ, ईरान जाऊंगा तो मुझे मार देंगे क्योंकि मैं रिवोल्यूशन टाइम में भाग के आया था और एक अमेरिकन लड़की से शादी कर लिया कि यहाँ पासपोर्ट ले लूँ और यहाँ का। अब देखिए उसका जिंदगी का दुख क्या है, बच्चों को बड़ा करने के लिए वो गाड़ी चला रहा है, बट ही इज अ वेरी वेल क्वालिफाइड टेलीकॉम इंजीनियर। कहने का मतलब क्या है कि जिंदगी में आप कोई फल के बारे में सोच के आपका डिसीजन सब लेंगे तो यही सब गलतियां हो रहा है। तो आप जो चीज बनना चाहते हैं वो चीज हो सकता है 5 साल के अंदर मार्केट से आउट भी हो जाए, आपको पता भी नहीं है। इसीलिए आप अपना स्किल सेट को इतना अच्छा से बनाइए कि कोई भी चेंज भी मार्केट में हो रहा है तो आप अपने को अडाप्ट कर सकते हैं, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। मेरा अपनी जिंदगी का अनुभव से मैं यही सीखा। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस पढ़े थे, लेकिन पॉलिटिकल साइंस से मेरा नौकरी का कोई संबंध नहीं था। यू हैव टू बिल्ड योर स्किल सेट्स एंड यू रिमेन केपेबल। अच्छे हर चीज, हर दिन अपने को एक स्टूडेंट मानिए, सीखते रहिए, नया लैंग्वेज सीखिए, कोई कम्युनिकेशन स्किल सीखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस डेज डेवलपिंग अ मेंटल स्किल्स टू डील विथ लाइफ एंड हैविंग सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो डिजायर क्या है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड एस्पिरेशन। इफ यू हैव अ संकल्प कि मैं ये सीखूंगा, ये करूंगा, वो बहुत अच्छा चीज है। लेकिन मुझे एक राजा बनना चाहिए, मुझे एक सैलरी $5 लाख का मिलना चाहिए, उस तरह का चिंताएं जो है ना, वो डिजायर में नहीं आता है, वो बेवकूफी है एक तरह से। तो आप प्रॉपरली हम लोगों को काउंसलिंग करना पड़ेगा। और बाकी जो खाने पीने का है, स्मॉल फन शुड बी अलाउड टू चिल्ड्रन, बिकॉज यू सी उनका वो एक अवस्था है जिसमें वो थोड़ा टेस्ट करेंगे जिंदगी में, थोड़ा अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, वो सब होना चाहिए। फिर उनका ज्ञान धीरे धीरे हो जाएगा, अपना वैराग्य आ जाएगा, उनको भी धीरे धीरे पता चल जाएगा कि बस ये तो अपना एनिमी है, क्योंकि उससे फिर पेट बढ़ जाता है और वो फिर ड्यूटी कॉन्शियस होके फिर वो वेजिटेबल और ड्राई फ्रूट्स और जूसेस उसमें अपने रिटर्न कर जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन थोड़े देर के लिए, हाँ, वो बच्चा को थोड़ा सा अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, आपको मार्क करना चाहिए टीचर और पेरेंट्स होने के कारण। बच्चा को, जो इसको आपका कहते हैं साइकोलॉजी में ADHD, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, वो स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत कम होता है वो बच्चों का। वो एक्सीडेंटली चीजें खरीदेंगे और बहुत सारे खा भी लेंगे, उनको याद नहीं रहता, पैस्ट्री 3-4 भी खा लेंगे। और उनको थोड़ा स्वीट इंटेक कम कीजिए, माइंड थोड़ा ये हो जाएगा। ADHD बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्कूल बच्चों में, तो उसके ऊपर हम टीचर लोगों को थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को कि जैसे बहुत सारा शुगरी फूड ना खाएं, कॉफी और टी ना पिएं रात के बाद, ये सब थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। Thank you, sir. Thank you, Swamiji. You very rightly said that yes, we need to have a difference between ambition and the desire. One must have ambition, but yes, restrain himself or herself from seeking the direct result of each and every action. Thank you very much, sir. If you allow, can I take one more question? This is Sure. okay. This one is the last question. This is from Swati Savita Rathi. गुरुजी 10 काउंटिंग ब्रीदिंग प्रोसेस जो एक्सप्लेन किया था, प्लीज एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, ये बहुत सरल है, इसको कहते हैं अन्नपानसति। आप क्या करेंगे, पहले थोड़ा प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम, यहाँ बाएं से लीजिए, धीरे से दाएं से छोड़िए, दाएं से लीजिए, दाएं से छोड़िए। एक फर्क है योग और बुद्धिज्म में, बता देता हूँ।
योग कहता है कि आपका ब्रेथ को थोड़ा मैनिपुलेट कीजिए, प्राणायाम जिसको हम कहते हैं। सो यू आर एक्सरसाइजिंग ब्रेथ कंट्रोल। बुद्धिज्म में ब्रेथ कंट्रोल में ब्रेथ को वॉच करते हैं वो लोग। उनका कहना है कि जो कृत्रिम उपाय से मैनिपुलेट करके स्ट्रेसफुली ब्रेथ को आप कुछ करेंगे तो चिरंतन सुख नहीं मिलेगा, बुद्धिज्म कहता है। मेरे हिसाब से वो भी एक तरह से ठीक है। तो पहले लेकिन आप माइंड बहुत रेस्टलेस है तो उसको साइलेंट करना चाहते हैं, तो आप जैसे ऐसे पकड़िए, ब्रेथ लिए, धीरे से छोड़िए, लीजिए, फिर छोड़िए, ऐसे 5-6 बार कीजिए। फिर खूब जोर से ब्रेथ लीजिए, रोकिए, कितना देर रोक सकते हैं, फिर धीरे 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 छोड़िए, ऐसे 5 बार कीजिए। माइंड थोड़ा पीसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप सिर्फ ब्रेथ जो आ रहा है जा रहा है, जब अंदर जाएगा आप क्या करेंगे, जो आपके बहुत सारे गुरु हैं, मेरे गुरु बोले थे कि कोई मंत्र से, जैसे आप बहुत सरलता पूर्वक करें, जैसे हरि ओम तत्सत। अब हरि ओम तत्सत कह कह के लिए, आप क्रिश्चियन है तो ओम जीसस करके लिए, ओ जीसस सेव मी करके लिए, जो भी आपका प्रेयर है आप बोलिए, उसको लीजिए, फिर धीरे से वही कह के फिर छोड़िए, फिर लीजिए उसको बोल के, फिर छोड़िए। आपका जो भी इष्ट है, आपका धर्म जो भी है, वो आप तय करें क्या बोलेंगे, लेकिन उसको ऐसे कंट्रोल करेंगे तो थोड़ा सा पीस आएगा। उसके बाद वो जो बुद्धिस्ट मेथड है 1 to 10 काउंट करने का, आपको सिर्फ सरलता पूर्वक अपना ब्रेथ को काउंट करना है। अंदर गया धीरे से, बिना क्लेश का, और धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। एक हुआ, एक। आपको यहाँ पे वॉच करना है कि आप अपने अटेंशन को ट्रेन कर रहे हैं, कि आपका अटेंशन बन जाता है माँ, ब्रेथ बन जाता है बच्चा। बच्चे के ऊपर माँ नजर जैसे रखती है, ऐसे आप अपने ब्रेथ के ऊपर नजर रखेंगे। यही है खेल। तो आप काउंट करेंगे 10, एक साइकिल हुआ, फिर दोबारा करेंगे। इससे आप 100 ब्रेथ को काउंट करेंगे, 10 सेट्स करेंगे मेडिटेशन पे, और उसके बाद आप पढ़ाई चालू कीजिए। ये एक बढ़िया टेक्निक है उसके साथ। और सोने से पहले भी इसको करके सोएंगे तो बढ़िया नींद भी आ जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू स्वामी जी। बहुत ही सरल तरीका आपने बताया अपने माइंड को कंट्रोल करने का, अपनी जो एंजाइटी है उसको कंट्रोल करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो before we move to the formal vote of thanks, I would like to request all the participants to please turn on their videos so that we can have a nice group photograph. Yes, please. Thank you everyone. Thank you very much. आकांक्षा, आप भी खोल दीजिए बेटा। यस, सो हमारी स्टूडेंट टीम के बच्चे लगे हुए हैं फोटोग्राफ्स को कैप्चर करने में। सिद्धार्थ, आप प्लीज मुझे बता दें व्हेन यू आर डन विद इट। हो गया शायद, सिद्धार्थ जी कह रहे हैं। सिद्धार्थ हो गया? थैंक यू बेटा। So yes, thank you very much everyone for joining us. So now it's time for the formal vote of thanks. On behalf of entire team of this workshop, I extend a hearty vote of thanks to the distinguished speaker for today, Swami Sham Chaitanya ji, for sharing his enlightening thoughts and deep knowledge with us. Sir, we are really very thankful to you for enlightening us on the deep spiritual issues. We are grateful to our principal, Sir, Professor Ravi Narayan Kar, for his valuable guidance and much needed encouragement always. I would also like to thank the entire team of this 2-week workshop, IQAC coordinator, Dr. Kusha Tiwari, Sports Committee convener, Shri V.S. Jaggi, NSS program officer, Dr. Jasveer Singh, CHD convener, Dr. C. Nodabas, Dr. Ruchika Ramakrishnan, Dr. Gayatri Chaturvedi, Dr. Mastaram, the instructor for our yoga sessions, Dr. Sunita Punia, Dr. Prabhat, and Dr. Vivekanand Nartam.
for their valuable support and contribution in making this 15-day workshop a great success. We are thankful to our technical team members, Mr. Suman Jha and Mr. Gaurav, for handling the technicalities in this workshop. I would also like to thank the student team of this workshop for their wholehearted contribution. The entire background work, starting from designing posters to certificate distribution, is being carried on by our student team. Thanks a lot for your dedication in your exam times also. Last but not the least, no program can be a success without engagement of participants. We are privileged to have an interested audience which keeps us going by by sharing their queries and questions and giving us timely motivation always. So आप सभी से ये अनुरोध है पार्टिसिपेंट से कि हमारे साथ जुड़े रहें, आने वाले दिनों में भी हमारे कार्यक्रम, हमारी वर्कशॉप के सेशन से लाभान्वित हों। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आपका एक बार तहे दिल से फिर से बहुत बहुत आभार। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू प्रिंसिपल सर, जगी सर, Sunita ji, Seema Dabas, everyone. Thank you. Okay, thank you. Can we do the Shanti mantras, these three lines in the end? Yes, okay. Sure, sir. The prayer is like this. Please lead us from falsehood to truth, from asat to sat, and lead us from darkness to light, and from death to eternity. That is a simple, short prayer. So that's what we will do. Om asado ma sadagamaya. Tamaso ma jyotirgamaya. Mrutyur ma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Tat Sat. Okay. So thank you. We'll meet again, and till then. So the next class is on 10th. Okay. So till then, goodbye. Take care, and bye. Thank you, sir.